And there you have it. That's the winning moment for New Zealand, continuing their command over Pakistan in the Champions Trophy. That's 4 in a row for Team New Zealand, and a very questionable batting effort by Pakistan this evening. We're going to talk all about it, but let me first welcome you all as New Zealand celebrate. We are going to take a look into this game. I am Fakhri Anam, and you are watching the DP World Dressing Room. And with me in the dressing room, I've got 4 fantastic people. Of course, I've got the toe-crushing Waqar Younis, the swing Sultan, and the swinging Sultan, Wasim Akram. Of course, we've got a very special guest. We've got Nikhil Chopra. Nikhil, welcome. You've played for India, ODI specialist, off-spin bowling, and a lot of slogging. We're going to talk about that later. We have to. And of course, we've got a very special guest, a special substitute actually, जिसके बारे में हम बात करेंगे. Impact player, भाई. Impact player, असल impact player है. 100 test matches, 100 plus test matches, 19 centuries. We've got Cheteshwar Pujara. Welcome, welcome, and welcome. Thank you very much, guys. Let's get on to the business. सबसे पहले आइए नजर डालते हैं मैच समरी के ऊपर. ये रही मैच समरी आप लोगों के सामने. This is how it all went down. Pakistan winning the toss and putting New Zealand in to bat. And in one point, it looked like Pakistan had kind of gotten a grip on this team. But look at this, how young William played up top with 107 at a 94.69 strike rate. Fantastic there. And then a bit of a collapse in middle. Conway, Williamson, Mitchell not making big runs. But then Latham coming into the game with 118 at 113.46 strike rate. And then Glenn Phillips at the bottom there, 61 of 39 deliveries, 156.41. On the bowling side, Pakistan, well, there was a bit of an effort there. Salman Agha, 3 overs for 15. And then you've got Khushdil Shah, 7 for 40. Shaheen Afridi, 68 of 10. No wickets there. But it was Naseem Shah and Haris Rauf picking up 2 wickets each. And in reply, it was a very, very depressing Pakistani batting effort. And we're going to talk about that. But what happened? Why was it like this? We had an unfortunate incident with Fakhar Zaman. So Saud Shakil came in to bat first. Azam then followed. Babar Azam was there with him. Babar Azam के बारे में भी बात करेंगे वसीम अकरम से खास तौर पे. The captain trying, but unfortunately getting out on that spectacular catch by Glenn Phillips. And then Salman Agha putting up 42. That was great. That was a great innings. It was 150 के strike rate पे उन्होंने खेला. And then of course Khushdil Shah was the star of the night. The 140 strike rate, 69 of 48. But in the end, it was not Pakistan's night. That's a big defeat because that hits the net run rate. Let me start with you, वसीम. आज बाबर आजम ने वो किया जो आपने प्री मैच में कहा था कि बाबर आजम को चाहिए कि वो उसको बोला जाए कि वो बिल्कुल फिक्र ना करें रन रेट की, उसके लिए बिल्कुल कोई तवज्जो ना दें. Everybody should bat around him and he should take all the time in the world, and he did. Yeah, he actually did. मैं वो एक जोक है, फिर मैं आता हूँ इस पे. वो जोक ये है कि एक बंदा अपनी बीवी से नाराज होकर ना, लड़ाई होती है, घर से निकलता है बाहर, बड़ा गुस्से में होता है. तो गुस्से में उससे गुस्से में बंदे से कुछ भी निकल जाता है. तो उसने कहा मैं मारी जावा, तो वो मारी जाता है. तो ऊपर जाके वो कहता है यार मैं ते गल ही कीती सी, तुसी ते सीरियसली ले लिया, मार ही देता है मैनू. ते मैं भी गल ही कीती सी कि बाबर आजम के खिलाफ. उसने तो सीरियसली लिटरली उसको ले लिया है कि बंदा उन गल भी नहीं कर सकता. भाई गल तुसी कीती सी और बड़े आपने सीरियसली क्यों पुजी बाजी बड़े सीरियसली नहीं बोला था कि बाबर को चाहिए कि वो खेले, बाकी सब उसके इर्द-गिर्द खेले. ऐसे भी नहीं बोला था कि इतने सारे डॉट बॉल्स. देखिए पहले बात करते हैं पाकिस्तान की बॉलिंग की. बिल्कुल. पाकिस्तान स्टार्टेड ऑफ वेल. न्यूजीलैंड को 73 पे 3 आउट पे कर लिया. आई थॉट के मैच में बॉल टर्न भी हो रहा था, लग रहा था. हमने कहा था पिच रिपोर्ट यहाँ पे बैठे बैठे के बॉल यहाँ पे घूमेगा. पर उसके बाद मेरा नहीं ख्याल तारीफ की जाएगी लेथम की जिसने 100 किया, पार्टनरशिप लगाई. पर ग्लेन फिलिप्स का की करना है. वो भाईजान ये तो बड़ा मसला. देखें पिछले इस आखिरी 10 में पाकिस्तान बॉलर ने 113 खाए. ग्लेन फिलिप्स भाई थे, उसमें भी थे. और उससे 10 दिन पहले आखिरी 10 में 123 खाए, उसमें भी ग्लेन फिलिप्स भाई थे. तो दैट शोज कि अब बाकी टीमों को पता लग चुका है कि आखिरी 10 में इन पे आपने अटैक रखना ही रखना है.
बिकॉज इनके पास कोई प्लान बी नहीं है बॉलर्स के पास। अगर हम यहाँ बैठ के स्टैट दे के बात कर सकते हैं तो बाकी टीमें तो मुझे डिस्कस करती होंगी ना मीटिंग्स में सारी बिल्कुल। चीजें। और न्यूजीलैंड एक ऐसी टीम है कि जिनको उनकी स्ट्रेटजी बहुत अच्छी तरह से पता है। 3 विकेट उनके जो इंपॉर्टेंट 3 विकेट थे वो शुरू में आउट होने के बाद 300 से ज्यादा रन बनाना, मतलब उनका जो मिडिल ओवर में जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी करी, क्योंकि वहां पर थोड़ा संभल के खेलना होता है, बट उसके साथ जो बाउंड्री बॉल्स मिलने चाहिए थे वो उन्होंने बनाए स्पिन के सामने, खास करके जो उनकी स्ट्रेंथ एक्चुअली नहीं होती है। Yeah. बट स्पिन के सामने उन्होंने जिस तरह से बल्लेबाजी की, खास करके लेथम ने जो स्वीप शॉट्स खेले, तो वहां पर कहीं ना कहीं पहले भी हमने बात करी थी कि पाकिस्तान के जो स्पिनर्स है, वो एक स्ट्राइक बॉलर है बट बाकी के जो 2 स्पिनर है वो इतने इफेक्टिव नहीं है, और वो वहां पर कहीं ना कहीं एक्सपोज मिडिल ओवर में उससे एक और बात भी ज़हन में आती है, विकी कैन आंसर इट। अब जैसे खुशदिल शाह ने 7 ओवर किए और सलमान ने 3। मेरा ये पॉइंट है, अगर सिचुएशन, जरूरी नहीं कि हर एक ने 10-10 ओवर ही करने हैं, इट्स नॉट नेसेसरी। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द पिच, अगर टर्न हो रहा है तो आप 1-2 ओवर और करा दो स्पिनर्स को। आई एम जस्ट सेइंग कि शायद यहाँ से भी इनसे गलती हो गई है कि वो 7 उसने किए, 3 उसके पास भी 10 से खत्म हो गए, अब फास्ट बॉलर्स ले आओ दोबारा। आपने रिदम देखना है, आपने बैटिंग देखनी है, कौन करने आ रहा है। स्वीपें मारते हैं, उल्टी स्वीपें मारते हैं, तो आप उस तरह की चेंजेस नहीं नजर आई। आज मुझे प्रेशर में आ गए, उसके बाद एंड में तो फील्डिंग ऑल ओवर द शॉप थी। खुशदिल शाह यहाँ घूम रहा है, गेंद ऊपर से जा रहा है, वो हारिस रऊफ उसको शिकायत लगा रहा है। अब इस लेवल पे ये चीजें कप्तान ने नहीं बतानी भैया, ये प्लेयरों ने खुद देखना है कि बाउंड्री से आना है कि 10 कदम अंदर से आना है। नया बैट्समैन है तो आप अंदर से आएंगे, अर्ली ऑन है, मिड ओवर्स में है, आप थोड़ा अंदर आएंगे, आखिरी 5-8 ओवरों में आपने बाउंड्री से ही आना है। ये कप्तान ने नहीं बताना, ये आपने खुद सीखना है। 113 runs scored against Pakistan in the last 10 overs. Waqar, what was going on there? आखिरी 10 ओवरों में इतनी छितरोल हमारे बॉलरों की, 113 रन। I mean, I'll go back Yeah. in the start of the game. I mean, जब विकेट्स मिल गए थे तो उसके बाद हमें गेम को, मैं सुबह के भी शो में, दोपहर के शो में यही कहा था कि जब तक एज अ पैक आप बॉलिंग नहीं करते ना, जब आपकी एक स्ट्रेटेजी होती है कि हमने स्क्वीज करना, आज आपको स्क्वीज किया ना उन्होंने। एज अ पैक का मतलब भी कि जरा बताएगा हमारे, मतलब कि आप 5-6 बॉलर हो ना, जो वो आप एक दूसरे को जब तक कॉम्प्लीमेंट नहीं करेंगे ना, कि मैं अगर मैं 2 रन देता हूँ तो मुझे अगले बॉलर से चाहिए कि मैं 2-3 रन ही वो दे। अगर मैं इधर से अच्छा ओवर करता हूँ तो दूसरी तरफ से अगर मार पड़ जाती है तो उस ओवर का कोई फायदा नहीं है। आपने एक प्रेशर बिल्ड करना होता है। एंड आई फील कि पाकिस्तानी बॉलर्स रिसेंट पास्ट में वो ऐसा सोचते भी नहीं है। दे जस्ट गो टू हार्ड टू टेक विकेट्स, और विकेट्स ऐसे नहीं आती। आप अगर आप उनके बॉलर्स को देखेंगे तो अर्ली ऑन उन्होंने आपको कुछ नहीं दिया, तो दैट्स इट, गेम वाज डन इन द फर्स्ट 10 ओवर्स। हमने कोशिश भी नहीं की, हमने कोशिश ही नहीं। हमें तो विकेट्स भी मिल गए थे, हमें 3 विकेट्स मिल गए थे, हमने स्क्वीज नहीं किया ना। हमने उस रन रेट को रोकने की और किसी तरीके से उसको हम ब्रेक्स लगाते, एक तरफ बॉलिंग करते। आखिरी 10 ओवर में तो फिर ये बात आ गई थी ना कि अच्छा वो 2 बैटर्स सेट हो गए हैं, अब क्या करें। अब फिर एक तरफ तो आ जाओ ना, इधर भी छक्के बाज रहे ने, उधर भी चौके बाज रहे ने, सामने भी बज रही है। सो दैट मींस देयर इज नो प्लानिंग। So I feel that the planning was missing in the bowling. These boys have been playing for a long time. Yeah, बिल्कुल नए नहीं है। अब प्लानिंग कोच ने करके नहीं देनी है, आपने खुद as a team on the field. Shaheen Afridi has been playing for good six years More, now, probably. 6 years now. Even Naseem also playing. लेकिन वो जो भी माइंडसेट है ना हमारा कि जी हमारा रिवर्स हो गया तो हम विकेटों के बीच में से गुजर जाएंगे, वो नहीं गुजरने देते। आप मॉडर्न क्रिकेट में अगर रिवर्स हो भी रहा हो तो आपको एक प्लानिंग के साथ चलना पड़ेगा। वो दिन चले गए जब हम क्रिकेट खेला करते थे। अब वो बैटर्स आर वेरी डिफरेंट नाउ। Somehow, Nikhil, it looks like Pakistan is still playing in the 90s. 90s। अगर आप आज का भी गेम देखें, इफ यू जस्ट कंपेयर एपल्स टू एपल्स, जिस तरीके से न्यूजीलैंड के बॉलर्स ने गेंदबाजी की पहले 10 ओवर में, हार्डली एनी फ्रीबीज। 10 ओवर 20 रन 22 रन 2 विकेटें, कोई बॉल डाउन द लेग साइड इजी चौका नहीं मिल रहा था, या एक्स्ट्रा कवर चौका खाया हो, या ऑफ स्टंप के बाहर रूम आपने देखे वो चौका खाया हो। फर्क वही पाकिस्तान बॉलर्स के देखिए, जो ताकत है, आपने पहले 10 ओवर में फ्रीबीज दी, 10 ओवर में आपने 3 विकेटें भी निकाल ली, 70 पे 3, उसके बाद आप चौके खाते रहे। फर्क ये है, आई गो बैक 50 ओवर की क्रिकेट के इतिहास में, हिस्ट्री में, बीच के ओवर्स में अगर आप विकेटें नहीं लेंगे ना, तो आखिरी के 10 ओवर में विद दिस न्यू रूल कमिंग इन, सेट बैट्समैन आपको एवरेज 85 से 90 रन बना के देगा ही देगा।
बीच के ओवर में आप विकेट निकालेंगे, नया बैट्समैन आखिरी 10 में आएगा, तब आप अपनी ताकत, जो आप कहते हैं 3 फास्ट बॉलर पाकिस्तान की ताकत है, वो उसको गेम को कंट्रोल कर सकते हैं। आपके बीच के ओवर्स में आपके एक फ्रंट लाइन स्पिनर डाल रहा था, 2 पार्ट टाइमर्स डाल रहे थे, वो बहुत वैलिड पॉइंट है जो वसीम भाई ने कहा। भाई ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आपका एक बॉलर 3 ओवर अच्छे डाल रहा है, 2 ओवर और निकाल दो, तो आपका मेन बॉलर को एंड में 2 ओवर कम डालने पड़ेंगे। सो यू हैव टू बी थिंकिंग ऑन योर टोज, यू हैव टू बी अ स्टेप अहेड। तो आपको बॉलर चाहिए जो आपको बीच में विकेट निकाले, नहीं तो एंड में जितना मर्जी बॉलर पा रहे हो, आखिरी 10 में सेट बैट्समैन ऐसी विकेटों पे वो पिटाई लगेगी लगेगी। और एक और चीज भी जो नोटिस करने वाली थी ना आज, कि एक अच्छी चीज चल रही होती थी और सडनली आपने उसको चेंज कर दिया। मुझे समझ में नहीं आया, कुछ दिन अच्छे बॉलिंग कर रहा था, उसको एक स्वीप लगी, चौका लगा, आपने उसको हटा के आप पेसर ले आए, आपने उनके लिए काम आसान कर दिया। वो तो ये चाह रहे थे कि हटे के जो स्पिन हो रहा था तो मुश्किल पड़ी हुई थी। आप एक तो हमारी मिथ मुझे ये नहीं समझ आती कि जी अगर खब्बा बैट्समैन है तो उसको खब्बा बॉलर बॉल नहीं कर सकता, अच्छा बॉलर सेंटनर है ना, किसी को करा लो आप, किसी को करा ले। सो आई फील कि ये मिथ भी खत्म होनी चाहिए। और आज रिजवान ने, आई थॉट ही मेड लॉट ऑफ मिस्टेक्स, लॉट्स ऑफ मिस्टेक्स एंड फील्डिंग आल्सो। आई मीन ओवरऑल अगर मैच की कहेंगे तो बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, बट इवन फील्डिंग में बॉल जब बाहर जाता था ना फील्ड में, एवरी टाइम देयर वाज 2। आप उनका उठा के देख लें तो एवरी टाइम बॉल वेंट इन, कि यार रनआउट की अपॉर्चुनिटी होती थी, 2 रन तो होते ही नहीं थे। सो आई थिंक हमारा कहीं ना कहीं फिटनेस का भी इशू है। नहीं, कहीं ना कहीं है। अब फील्डिंग की बात पुजी से पूछते हैं। पुजी, फील्डिंग मैंने बड़ी दफा कहा है अपने शोज में भी, इवन एज अ कमेंटेटर, कि बैटिंग में टैलेंट चाहिए, बॉलिंग में टैलेंट चाहिए, फील्डिंग सिर्फ आएगी आपको करने से फिटनेस है। आप बताइए, एक्सप्लेन कीजिए कितना इंपॉर्टेंट है ये। और फील्डिंग इंप्रूव करने के लिए आपको सिर्फ मेहनत करनी है, एक आपको फिटनेस अपनी बेहतर करनी है, वो तो बहुत ही ज़रूरी है, बट फिटनेस के साथ अगर आपका एक मन जो होता है कि मुझे फील्डिंग इंप्रूव करनी है, और आज के जो ज़माने में जो क्रिकेट जितना अपडेट होते जा रहा है, अगर आप अच्छे फील्डर नहीं हो तो आप वाइट बॉल की टीम में हो नहीं सकते हो। फाइनल लेग पे छुप नहीं सकते, बिल्कुल। अभी और आपके टीम में 11 में से 1 या 2 प्लेयर ऐसे हैं कि जिनकी फील्डिंग अच्छी नहीं है, फिर आप संभाल सकते हैं। बट यहाँ पर कहीं ना कहीं लग रहा है कि 5 या 6 फील्डर ऐसे हैं कि जिनके पास से आराम से 2 रन लिए जा रहे हैं। तो वहाँ पर फिटनेस तो बहुत ज़्यादा बेहतर करनी होगी, क्योंकि फिटनेस अगर बेहतर है तभी आपकी फील्डिंग बेटर हो सकती है। वेरी इंपॉर्टेंट। फील्डिंग की बात करते हैं वसीम, वकार, निखिल, एंड इफ यू लुक एट व्हाट ग्लेन फिलिप्स डिड टुडे, टेक ये कुछ हमारे पास एक पैकेज है छोटा सा, देखते हैं, जस्ट टेक अ लुक एट इट। आप कह रहे थे मन की बात ना पुजारा, लिए इसको कहते हैं मन लगाना फील्डिंग के अंदर, जरा चेक करें। एक तो ये कैच, दिस कैच ऑफ रिजवान, लुक एट दैट, जस्ट बॉल पास हो गया और फिर वो गया, यानी वो मिडल से निकला बॉल बिल्कुल जी। और इतना रिएक्शन टाइम, मतलब ये तो हम धीरे स्लो मोशन में देख रहे हैं, बट रिएक्शन टाइम उनको बहुत ही कम था, और बॉल को जो रिसीव किया उन्होंने और जितना जल्दी रिएक्ट किया, और कोई फील्डर होता तो ये कैच नहीं पकड़ पाता। चौका। और वो जो इनर सर्कल होता है ना, अगर आप देखें तो हम कहते हैं ना कि आप एंगल्स को कट करो, करीब आओ ताकि एंगल छोटा हो जाए। तो आप पीछे होते तो एंगल बड़ा हो गया तो बॉल दूर से निकल जाएगा, करीब आओगे एंगल छोटा हो जाएगा। तो अगर आप गौर से देखें तो वो हाफ वे खड़ा था, 30 गज का दायरा जो है ना, वो मेरे ख्याल 15 पे खड़ा हो गया, 18 पे खड़ा था, लिटरली 18 पे खड़ा होगा। सो दैट मींस द रिएक्शन टाइम इज वेरी वेरी लिटिल। तो बहुत ही उम्दा। मैं उनकी ये लुक एट दिस, जस्ट यार ये मुझे ये बताओ, इनके प्लेयर डाइव मारते हैं, ये देखिए आप, ये देखिए कहाँ खड़ा है, ये देखिए खड़ा का और दायरा देखें आप। हाँ, इनके प्लेयर डाइव मारते हैं, वो उठ के दोबारा डाइव मारते हैं, हमारे बाहर चले जाते हैं। ये कोई मुझे समझा दे यार। अगर वो एंगल भाई गौर से देखो, क्लासिक मतलब टाइम कम जो हम लोग बात कर रहे हैं, हैव अ लुक एट, ओह माय गॉड, हैव अ लुक एट दैट। बट जब बॉल जा रहा था, his eyes were following the ball into the palm. I mean, can't get better than that. Yeah, absolutely. कैमरा वर्क ऐसे देख के कैमरा वर्क या फील्डिंग both. You know, जिस तरीके से कैमरा वर्क, also the way they followed him, and then at the end of the day, क्योंकि ये ऐसे कैचेस, हेड कितना स्टिल है, आई मीन यू कैन जस्ट गो ऑन एंड ऑन। बट पूजी ने एक चीज कही थी, ये जो एक योयो टेस्ट आया था, जो इंडियन टीम भी करती है, अब हम लोग डोमेस्टिक में होते हैं, आपका भी जब टेस्ट हुई तो इंडियन क्रिकेट में डोमेस्टिक टीम में हो गया। अच्छा, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में देयर इज अ योयो टेस्ट दैट यू हैव टू पास बाय। ये योयो टेस्ट आया कहां से था? न्यूजीलैंड की वजह से। अच्छा 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 अच्छा, बिकॉज़ these guys were the fittest team. They said नहीं यार, we want to get fit as well. जो इनका जो पैरामीटर है, let's try and get close to that. So now this is everybody is following it.
राइट टू द कोर, सो दैट वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट का ब्रिज जो है वो गैप देखिए, जब आप बॉलिंग कोच आए थे मिसबा के साथ, तो आप लोगों ने भी तो शुरू किया था रेगुलर यो फिटनेस टेस्ट जिसे कहते हैं। अब आई डोंट नो अब यो टेस्ट पाकिस्तान टीम में हो, क्योंकि लड़के फिर नाराज हो गए थे इनसे, मिसबा से और इनसे, कि हमारे टेस्ट लेते हैं फिटनेस के, ताड़े टेस्ट नहीं लेने थे, मेरे टेस्ट लेने थे। नहीं, हमारे टेस्ट भी होते हैं, मगर हमारे तो अब मेडिकल टेस्ट होते हैं। बट उसमें क्रेडिट भाई ये विराट कोहली ने किया था, कप्तान कहता मैं भी टेस्ट दूंगा। Yeah, obviously. He says I want to start the trend and that's how things change। अब फर्स्ट कप्तान ही क्लास खुद कर रहा में है, हर जगह ये आपका होता है। फर्स्ट क्लास में हर जगह वो, हाँ जी, हर स्टेट फॉलो हर स्टेट फॉलो कर रहा है। फॉलो करते हैं। ये इंपॉर्टेंट मैसेज है जो हमारे फर्स्ट क्लास क्रिकेट रन करते हैं। इंडिया में हर स्टेट फॉलो करती है ये यो फिटनेस टेस्ट में। ये हाल ही योजना काफी चीजें होती हैं, वो रेगुलर बेसिस पे होता है। हमारे यहाँ भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर यो हनी सिंह को बहुत फॉलो करते हैं, बहुत गाने उसके सुनते हैं सब लोग। वहाँ तस्वीरें देखता हूँ मैं सोशल मीडिया पे, पावियां दियां ते खद्दां दियां ते बिल्कुल ऐसे ही है। निहारियां दियां लगी होंदियां ने सोशल मीडिया। All right, folks, with that, it's time for the DP World Smart Performance of the Day. Let's take a look. He's such a good, versatile player with the sweep shot and on a surface where... Smart performance of the day today. Fantastic work there, Pujara. बहुत ही बढ़िया, मतलब जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी करी, खास करके विकेट गिर गए और उसके बाद जहां पर आपको एक बैलेंस होना चाहिए मिडिल ओवर्स में, कि आपको पॉजिटिव भी बल्लेबाजी करनी है, स्ट्राइक रोटेट करनी है और उसके साथ में विकेट भी नहीं गंवानी है। बिल्कुल रोकना नहीं है, हाँ, बिल्कुल रोकना नहीं है, ज्यादा डॉट बॉल्स नहीं खेलने हैं, तो उन्होंने वही किया वहां पर। Yeah, and again, फिर वापस आते हैं वसीम, I would ask you this, where do we get players that can actually do stuff like this? Why can't we have players like that? Look, if you want me to brutally honest, Yes, brutal. I can be. Because हमारे कल्चर में कहते हैं ना, मिट्टी पा दो, रहन दो, अपने बच्चे हैं, क्रिटिसाइज ना करो, वो बड़ा नॉर्मल है हमारे यहाँ ये। बट आई थिंक ये हमारे बेस्ट है। दिस इज द बैड न्यूज। अगर कोई अच्छे होते इनसे तो वो आ चुके होते अभी तक टीम में। अगर एक दो हैं, अब पाकिस्तानियों को हमें एक नई चीज मिल गई, नया लफ्ज पर्ची। पर्ची इज सिफारिश से जो अपेरेंटली। अब इस लेवल पे तो पर्ची नहीं चलती ना। अब पाकिस्तानियों को भी समझाना मुश्किल है कि भैया बस कर दो। अब ये सिलेक्टर, अब हमारे 5-6 सिलेक्टर हैं। इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। डोमेस्टिक स्ट्रक्चर चेंज हुआ है बड़ी दफा पिछले 5-6 सालों में। विकी कैन एक्चुअली एक्सप्लेन इट बेटर। आई थिंक हम लोग ना कहीं डरते हैं डिसीजंस लेने से। बड़े टूर्नामेंट आ जाते हैं तो हम थोड़ा सा ना घबरा जाते हैं कि हम नए लड़कों को अपॉर्चुनिटी या चांस अभी दें या ना दें। अभी हार गए तो क्या होगा? हार तो गए हो तुसी। आपने ये पिछले टूर्नामेंट में किया, वर्ल्ड कप में किया ना। अभी आपने सारे वापस बुला ले, आमिर तू भी आ जा, इमाद वसीम तू भी आ जा, फलाना। तो कहाँ गए आप? अब यूएसए से हार गए। So I mean, looking back is not the way. So looking forward is bringing young. Common sense is here, guys. I mean, you can say no if you don't. आप यंग प्लेयर पे इन्वेस्ट करें, हार तो आप वैसे ही रहे हैं 100%। तो वो कम से कम यंग प्लेयरों से हारोगे 2-1 साल बाद उनको कॉन्फिडेंस तो आ जाएगा, लड़कों को सीख तो जाएंगे वो। और टैलेंटेड यंग प्लेयर और यंग प्लेयर की वाइट बॉल फॉर्मेट में काफी जरूरत है, क्योंकि आपको यंग प्लेयर की एक तो फिटनेस अच्छी होगी, उनकी फील्डिंग अच्छी होगी, शायद स्किल उतनी अच्छी, डरेंगे नहीं, शायद स्किल इनकी मैच नहीं कर पाए, बट कहीं ना कहीं पाकिस्तान में भी मुझे लगता है काफी टैलेंट है। मैंने पहले भी कहा, और वो जो सिस्टम जो है, अगर यही प्लेयर्स अगर न्यूजीलैंड के लिए खेलते होते और वहां पर उनको नर्चर किया जाता, शायद उनका जो अप्रोच है वो थोड़ा अलग होता। तो वो अप्रोच में बदलाव लाने की जरूरत है, क्योंकि टैलेंट, मेरे ख्याल से टैलेंट में ज्यादा फर्क नहीं है, बट आप किस तरह से स्ट्रेटेजी बनाते हैं, कौन से सिचुएशन में कैसे बल्लेबाजी या तो गेंदबाजी करते हैं। आपकी जो आखिरी 10 ओवर की हमने जो बात करी, वहां पर तेज गेंदबाजों के पास जो वेरिएशन होने चाहिए थे, स्लोअर बाउंसर्स नहीं डाले, बाउंसर्स डाले, स्लोअर बाउंसर्स नहीं डाले, सिर्फ यॉर्कर पे आप रिलाई कर रहे हैं। तो वहां पर बैक ऑफ लेंथ गेंद जो है स्टंप में डालने की जो जरूरत है, ऐसे विकेटों में आप विकेट देख के गेंदबाजी करनी चाहिए, क्योंकि आप पहले से डिसाइड नहीं कर सकते कि मैं सिर्फ यॉर्कर ही डालने वाला है। अभी पुजारा ने बात की ना कि व्हाइट बॉल में यंगस्टर्स की ज्यादा जगह है। उसमें आपको नए प्लेयर आपको लाने पड़ते हैं। अभी आप न्यूजीलैंड में भी देख लें, आप अपनी हिस्ट्री पाकिस्तान की उठा कर 90 हम कितनी 3 मेजर ट्रॉफीज जीते, चैंपियंस ट्रॉफी जीते, वर्ल्ड कप T20 जीते और 92 वर्ल्ड कप जीते। ये मेजर ट्रॉफीज है हमारी। आप उठा के देख लें,
उन सारे टूर्स के ऊपर आपके यंगस्टर्स गए हैं जिन्होंने वो जितवाए 92 में Yeah. वी वर ऑल यंग Yeah. ठीक है ना उसके बाद 2009 में आ जाए अफरीदी, यूनुस, all these मलिक guys. they were all young there were 6 or 7 really fresh birds in there और उसके बाद आप आ जाए 17 2017 उसमें फहीम अशरफ आया शादाब all आया these guys. सारे आमिर ये सारे यंगस्टर्स थे सो आई थिंक एनर्जी लेवल डिफरेंट हो जाता है जब आप यंग लॉट डालते हो और वनडे क्रिकेट में तो यू जस्ट कीप ब्रिंगिंग यंगर लॉट ना और आई थिंक पाकिस्तान डोंट डू दैट इनफ Well, we have a lot to talk about, but we need to take a break here on the DP World Dressing Room. When we come back, there's more on the other side, but याद रहे कि आप लोगों के सवाल और हमारे जवाबात #Ask the Room भी होगा आज के हमारे प्रोग्राम में देखते रहिए 10 Sports. Welcome back to the DP World Dressing Room. मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं 10 Sports. Our continued coverage of the ICC Champions Trophy 2025, and the news out of Karachi Stadium is that New Zealand have defeated Pakistan again for the 4th consecutive time in the Champions Trophy. With me in the dressing room, I've got 4 fantastic gentlemen. I've got the greats of the game, Wasim Akram, Waqar Yunus, also joining us, Nikhil Chopra, and of course our very special guest Pujara. And break पे जाने से पहले हम लोग बात कर रहे थे इसके ऊपर. Now let's take a look at this stat that we've just received, Wasim, that you were just telling me about. Now. You know, everything that we compare, there is a difference. There is something or the other where we are lacking. Yeah. Where are you going to put your finger on saying that ये issue है सबसे बड़ा? There is not one issue. There you go. ये कोई एक it's quick fix नहीं है ये Yeah. कि ऐसे करोगे तो ऐसे लड़के मिल तो जाएंगे. भाई ये तो क्विक फिक्स नहीं है ना. ये पिछले 4 सीजन से आपके साथ मैं यही सुन यार रहा हूँ. एक लीडर रहेगा तो कोई चीज होगी ना. Yeah. अभी मोहसिन नकवी साहब आए हैं, अब वो आए 2-3 साल रहेंगे तो कोई सिस्टम बनेंगे, कोई एक सिस्टम जो भी है सिस्टम चलेगा. और पिछले 3 सालों में तो पिछले साल में 3 तो चेयरमैन चेंज हुए थे, चौथे आए हैं ये. सो वो जब ऊपर से जाते हैं तो सारे नीचे ऑल ओवर द शॉप होते हैं. आई मीन वकार वर्क्स इन पीसीबी, ही नोज मोर देन मी. Well, I suppose. Waqar, shed some light on that. He's right. I think ये this has to stop at somewhere कि जहाँ पे consistency नहीं आएगी तो consistency नीचे भी नहीं आएगी, ऊपर नहीं आएगी तो नीचे कैसे आ सकती है? So it has to be consistent from the top all the way to the bottom. तब जाके आपको results better आएंगे. और then again once again वो जो stat अभी आप पूछ रहे थे उसी वजह से average age देख लीजिए. हाँ, वो 92 वर्ल्ड कप की मजर ने एवरेज एज भिजवाई है. वो थी 26 years and 182 days. 26 साल लगा लेना. Second youngest team to win the World Cup. Yeah. पहली the youngest team थी Australia, 26 years and 51 days in 1987 when they won the World और Cup. अभी हमारी क्या है? Last एवरेज एज अभी का नहीं मुझे पता, मैं ये इंटरेस्टिंग स्टैट्स आपको last बता रहा हूँ. Champions Trophy में we had 3 debutants. This In 2017. debuting in the Champions Indian Trophy. Champions Trophy. So हम डर किस चीज का? I have no देखना idea, but आखिरी 4 वनडे में आज जो बॉलिंग को फड़कास पड़ी है, लास्ट 4 वनडे हुए हैं पाकिस्तान के, उसमें मैं बॉलर्स की आपको एवरेज बता रहा हूँ. बॉलिंग की है, ये बैटिंग की नहीं है. हारिस राउफ द बेस्ट 35.33, देन शाहीन शाह अफरीदी 44.50, देन नसीम शाह 49, देन अबरार अहमद 54, then Salman Agha 124 and then Khushdil Shah 167. So इस एवरेज से वनडे नहीं जीत सकते आप. I'm sorry, you can't. और आपने जो मेंशन किया लास्ट के जो 2 गेंदबाज Yeah. जहां पर Part 100 timers. से पार्ट टाइमर्स, क्योंकि आपको 5 गेंदबाज ऐसे चाहिए कि जो प्रॉपर बॉलर्स है और उसके बाद छठा जो है वो पार्ट टाइमर चल किसी सकता का है. बुरा दिन हो तो 2-1 ओवर आगे कर हाँ, सके. क्योंकि आपके पास अगर 5 प्रॉपर गेंदबाज नहीं है तो वहां पर कहीं ना कहीं आपको आपके पास जो मिडिल ओवर्स में विकेट टेकर जो जिसकी बात कर रहे थे वो नहीं है आपके पास. तो वहां पर 5वां जो बॉलर है वो स्ट्राइक बॉलर होना चाहिए आपको 15 से लेके 40 ओवर के बीच में, जहां पर विकेटें दिलाए. वो जैसे निखिल ने कहा जी कि विकेटें अगर नहीं ली मिड में तो आखिर में कोई भी बॉलर हो आजकल के दौर में मार पड़नी आज पड़ती है. बैट्समैन सेट हो जाता है, आप 50 ओवर में 2 नई बॉलें यूज करते हैं. But वो ये 25 game, there is no Reverse quick or fix. no Then reverse? palace- Doesn't matter. There's no quick fix. And Waqar just said कि 2017 में हमारे पास ICC Champions Trophy में 3 debutants. 3 debutants. And that means that the selectors Yeah. believed in, you know, फखर कि यार जमान कि नए था, लोगों को फहीम जो है, अशरफ था बिल्कुल और रोमान बढ़िया। रईस था. मैं निखिल आपसे पूछता हूँ, अगस्त 2021 अगस्त से लेकर अब तक पाकिस्तान के पास 26 सिलेक्टर आके जा चुके हैं. We've had 26 different selectors in these years. In the last 3 years, in 4 4 and a years, half 4 years, years. yeah. So 4.5 years. How does that affect the development of a team and development of, you know, talent and bringing them up?
अगर कोई भी इंसान या एक टीम 3 सेलेक्टर हो 5 सेलेक्टर हो, आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट इकट्ठे देख ही नहीं रहे। हाँ। एक सेट आया उनको बदल दिया, दूसरा सेट आया उनको बदल दिया। Not because Waqar Bhai is sitting here, but when you have some I'm not a selector, by the way. I know, no, I'm coming to that. You can no, if you want to. No, selector छोड़ दे. As one of the greats of the game, you are looking to run the system. Can't the selectors come and sit with you कि आप first class cricket देख रहे हैं, या there's a team that's looking after first class cricket, spin की बात हो रही है. Just small example, ऐसा हो नहीं सकता. आज के मैच में देख ले, न्यूजीलैंड out of the subcontinent, New Zealand spinners turning the ball close to 5 degrees vis-a-vis a Pakistani team spinner not more than 2.2 or 2.3. ये है ग्राफिक है हमारे पास, ये जरा दिखाते हैं आपकी So, स्क्रीन के ऊपर लेकर आते जमीन हैं। आसमान का फर्क है. So I'm just saying कि वकार भाई से कम आप बात करें, या जो भी सिस्टम चला रहे, who's watching the game day in and day out, you have to sit together and do it. I'm not comparing, but how the BCCI is structured, because I worked with the BCCI 2 years, under 19 India coach. Submit a report, goes in, then that report is followed. Development tour, India A tour, the boys go. Right. They keep seeing through the ranks, and then you have certain amount of from junior selectors to senior selectors. Some junior selectors get automatic promotion. They've seen the kids go. And then they become senior. So, एक लफ्ज़ में selectors. इसको explain करो तो communication is 100%. important, like crucial. It's key. Communication is Communication, and you're answerable to your job as well. Most important. Yeah. You have to be true to your job. ये selector वकार थे। भी हमें सुबह से बता रहे हैं you're answerable for your job. ये कह रहे थे I'm मैं answerable इनसे for my पूछ job. मुझे थक गया, मैं कहा पाजी आपसे सेलेक्टेड क्यों नहीं पूछते? I'm a little surprised with that. आपको मेरा जॉब पता है? हाँ दसो तुझे पता है? तू दस तू दस मतलब आप सारे मेरे पे उंगलियां उठा रहे हो, तो मैं आपको यही नहीं पता कि मेरा जॉब क्या है? क्या है? मुझे खुद नहीं पता। यही तो कह रहे हैं वसीम भाई, यही तो वसीम भाई कह रहे हैं कि आपको खुद नहीं पता। It's not his fault. It's not their fault. Somebody has to tell them कि ये तुम्हारा है, तुमने इसको देखना है, अंडर 19 तुमने देखना है, अंडर 23 तुमने देखना है, जो भी है. बट कोई बताएगा नहीं ये 500 लेजेंड्स क्या करेंगे बैठ के वहाँ. That's not their fault. Right. I think last job that he was मुरीद के की थी, की कर रहे अभी मुरीद के से गया था. Come on man, come on, Waqar, you can't be like that. No, we had this camp, under 19 का camp था, जिस I attended for a few days. अच्छा, तो क्या देखा आपने मिसबा वहाँ पे? भी, अभी वो लड़के बच्चे हैं, छोटे हैं, रीजनल क्रिकेट था, it's not the under 19 even Pakistan. So I mean there is talent. Talent लेकिन तो इसको definitely है. चैनल कैसे करना, that's the thing. तो बॉस ये हम पता नहीं कब से सुन रहे हैं टैलेंट। पुजी बाजी भी कह रहे थे कि टैलेंट बहुत है। कितने टैलेंट बताते है, हो? और उसके साथ जो हम बात कर रहे थे कि सारे सिलेक्टर मिलके जो सारे एक्स प्लेयर्स हैं जिनके पास एक्सपीरियंस है, वो भी काफी मैटर करता है. बट सबका ओपिनियन देखिए, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना है, क्योंकि एक वकार भाई को कोई और प्लेयर पसंद होगा, वसीम भाई को कोई और, बट अल्टीमेटली पाकिस्तान क्रिकेट के लिए क्या अच्छा है Exactly. वो जरूरी है, क्योंकि सबका अलग अलग ओपिनियन है. बट आप लास्ट में जो डिसीजन होता है वहां पर आप पाकिस्तान क्रिकेट को आगे रख के बाकी की चीजें जो है वो साइड में रखनी होती है. अच्छा चलो, ये तो टैलेंट की बात होगी ना सारी की सारी. वसीम, लेट मी आस्क यू, आज पाकिस्तान की बैटिंग में शुरू में खास तौर पे where was intent? Why was there no intent? ठीक है, देखिए एक तो मुझे ये समझ नहीं आई, अब ना किसी ने एक्सप्लेन किया है, ना किसी ने पूछा है मैच के बाद इंटरव्यू में. अगर फखर जमान इंजर हुआ है, वो हम सबको पता है कि कोई टाइमिंग क्या है, 10 मिनट है, 12 मिनट है, और मुझे अभी 20 टाइम मिनट, 20 मिनट से ज्यादा अगर आप बाहर रहेंगे फील्ड में, तो उतनी देर आप अगर ओपनर हैं तो बैटिंग नहीं कर सकते. अगर वो बैटिंग करने आया 4 पे, तो इसका मतलब वो इंजरी सीरियस नहीं थी. ये देखे ना, जब फखर जिस तरीके से इंजर हुआ है, डाइव भी पूरी नहीं मारी. वो कहते हैं ना, आधी क्या, आधा कुत्ता आधा बिल्ली टाइप डाइव थी. I think spasm हुआ था उसको. So जिसे वो कहते हैं jerk आती है ना sometimes. नहीं, ठीक है, फिर चाहिए था बाहर बैठे लोगों के भाई 10-15 मिनट ट्रीटमेंट करा, 20 मिनट 19वें मिनट अंदर चला जा. हाँ. जब भाई फाइन लेग पे खड़ा हो, फिर वापस आ जा थोड़ी देर बाद, ताकि ये 20 मिनट ना जाए. वो मोमेंटम की जो बात कर रहे थे, वो आपने साउथ को ओपन भेजा है, वो साउथ बेचारे को पता भी नहीं होगा मैंने ओपनर जाना है, तो लास्ट मिनट में बताया होगा, ही वाज लॉस्ट. तो वो स्टार्ट ही अच्छा नहीं हुआ, और फखर 4 पे आके 20, 22, 24 कर गया है. बट दैट्स नॉट हिज प्लेस. हिज बैटिंग इज इन फर्स्ट 10 ओवर्स. जो चाहिए पाकिस्तान, जो चाहिए था 300 चेज करना है प्लस.
ओके सो एक चीज है, निखिल ने भी बताया, जो कि हमने मैच के दौरान भी वो स्टैट देखा था कि न्यूजीलैंड के बॉलर्स ने 5.4 डिग्रीज का टर्न जो है वो हासिल किया और पाकिस्तान के 2.4 बॉलर Almost half. 2.4 हाफ द टर्न. So, Waqar, who is the spin coach of Pakistan team? Why is it that New Zealand was turning the ball more, whereas हम ये expect कर रहे थे कि second innings में due होगी तो ball फिसलेगा, हाथ में grip नहीं आएगी. उनका ज़्यादा turn हो रहा था और हमारे वालों का turn नहीं हो रहा था. क्यों? और who's the spin coach? I think first of all, I don't think कि due ऐसी आई है. इस लेवल पे आके कोच क्या बताएगा? ये तो expected था कि शायद आ जाए. अगर आ जाएगी तो it will help. एक्चुअली ड्यू थोड़ी जल्दी आ गई थी पाकिस्तान के आखिरी 10 ओवरों में बॉलिंग के वक्त. आगे चली गई फिर. I think उनको they got off guard little bit. उनको I think रिजवान को भी नहीं पिच की समझ आई and he thought okay, जैसे पायन नहीं समझ आई, इसने पायन का अल्लाह का शुक्र टॉस जीत गए. I thought quarter the game won. I was so wrong. You were so wrong. 25. So मेरा रिजवान का भी यही हुआ. उसने कहा टॉस जीत गए हैं, शायद मैच भी आधा जीत गए. तो ऐसा होता नहीं है क्योंकि आप रिसेंटली आपने देखा न्यूजीलैंड हैज बीटन यू few times, so That's again, Waqar, that's not the answer to my question. First question is, who's the spin coach of Pakistan? I think मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन अब्दुल रहमान को बैठे देखा था लेफ्ट आर्म. So Abdul Rahman would be the लेफ्ट आर्म स्पिनर. नहीं, बट वो तो अभी कोच आया ना, आकिब वगैरह के साथ आया होगा ना 2-4 महीने पहले. ऐसा ही है. 2-4 महीने में टर्न तो नहीं सिखा सकते ना बॉलर को आप. तो ये नहीं, बट आजकल वाइट बॉल क्रिकेट में ज्यादातर स्पिनर फ्लैट गेंदबाजी करते हैं और सैंडनर जिसका बॉल सबसे ज्यादा घूमा वो तेज हल्की वाली और फ्लाइट कर रहा था बॉल, जो रेड बॉल क्रिकेट में ज्यादा होती है. व्हाइट बॉल क्रिकेट में अभी वो स्किल चली गई है. तो वहां कहीं ना कहीं वो करेज होना चाहिए. स्पिनर के पास भी वो करेज होना चाहिए कि पुजारा, जब आपके पास 350 रन होना पॉकेट में और फिर उसके बाद आपकी जो आप दूसरी टीम ने पहले 10 ओवर में 22 रन की और 2 विकेटें गिरी हो, फिर आप छत से फेंकते हो कि आजा भाई मार मुझे. सैंडनर तो पहली इनिंग में भी वैसे ही डालता है. I know that. I'm just giving, but that's the confidence you have. Yeah, Nikhil, you wanted to say something. देखिए इस स्टेज पे आके ना स्पिन बॉलिंग कोच आप जिस मर्जी को रखें, ये काम सेलेक्टरों का होता है या कप्तान या कोच बोलता है भाई मेरे को टीम में 2 स्पिनर चाहिए, 1 स्पिनर चाहिए, तो सिलेक्टर ढूंढ के देता है भाई अगर राइट आर्म लेग स्पिनर है इसका बॉल इतना घूमता है, फिंगर स्पिनर है तो उसका इतना घूमना चाहिए. वो स्टार्ट देखिए लगभग 5 डिग्री टर्न कर रहा पाकिस्तान के गेंदबाज, वो आधा हो गया. इस स्टेज पे आके जब मिच्योर हो जाता है, बॉल पकड़ना बतौर स्पिनर का एक तरीका होता है ग्रिप करने का, वो इस स्टेज पे आके थोड़ी ना चेंज कर सकते हैं. यू कैन ओनली मोल्ड थिंग्स. जब कोई 16 साल का 17 साल का है, इट्स लाइक अ गार्डनर, यू आर कटिंग द रूट्स एंड यू वांट द plant to come out the way you want to. Right. But इस उम्र में जब प्लांट पूरा तैयार हो जाए तब वो कुछ नहीं हो सकता. झाड़ियों वाला दरख्त बन जाए तो बंदा फिर की करे. Exactly. It's too late. It's too late. मेरा ये है कि जब हम अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया भी गए हैं, साउथ अफ्रीका भी गए हैं, दोनों जगह पे हम उनको हरा के आए हैं और हमने दोनों जगह पे लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर लेके गए थे. मुकीम को लेके गए, सुफियान मुकीम को लेके गए, who had success. I know. Who had really good success. A youngster, left armer, little bit hard, इस एंगल से बॉल करता है. Even फैसल अकरम को भी लेके गए, ऑस्ट्रेलिया लेके गए. और and I was excited कि जी अब आप ये ट्रायल बेसिस पे ये टूर्स हो रहे हैं और अच्छी बात है कि हम जीत भी रहे हैं और यंगस्टर परफॉर्म भी कर रहे हैं. So we will have them in the Champions Trophy. एक पैकेज आएगा जो कि अनसीन अननोन, उसको खेलना थोड़ा मुश्किल होगा. आई डोंट नो व्हाई दे डिडंट गो विद देम और व्हाई डिडंट दे कीप देम, बिकॉज़ पाकिस्तान ने बैटर्स ज्यादा रखे हुए हैं इस 15 में. Absolutely. So a lot of question marks on the Pakistan strategy. And again, of course, सवाल तो उठेंगे. जब ऐसी परफॉर्मेंस होगी तो उसके बाद हर दफा सवाल उठेंगे. कुछ लोग नाराज होंगे, मगर बात यह है कि हमें हकीकत तक पहुंचना है. We've got to find out what really is going on with the team and how Pakistan team can perform better. You're watching the DP World Dressing Room. We will see you on the other side of the break. किसने? वो जिस स्पिनर की बात कर रहे हैं. Welcome back to the DP World Dressing Room. मैं फखर आलम, आप देख रहे हैं 10 Sports, our exclusive coverage of the ICC Champions Trophy 2025. With me in the dressing room, I've got Wasim Akram, Waqar Yunus, Pujara, and Nikhil Chopra, and we are talking about a game that has just gone down. Coming back to Pakistan's batting, Pujara, let me bring this to you. What do you think is going on with the Pakistan batting? Where are we getting stuck? What is the deficiency there? I would start with the intent, because the intent in the first 10 overs, when you are
just scoring 25, 27 runs, 22. तो अगर आप 300 से ज़्यादा चेज कर रहे हैं, आपकी अगर 3 या 4 विकेट भी गिर जाए, अगर आप 50 से 60 रन के करीब नहीं पहुंच रहे, तो आप मैच कभी जीतने वाला ही नहीं है, अनलेस के कोई बहुत ही एक्सेप्शनल इनिंग खेले। बड़ा कम होता है इस तरह। बहुत बहुत कम। तो आप 20 रन तो एक्सेप्टेबल नहीं है, मतलब 22 रन 10 ओवर में अगर 3-4 विकेट भी गिर जाए, पर आपको कैसे भी करके 50 रन बनाने, और वहां से अगर पूरी अगर इनिंग की अगर बात करें तो पार्टनरशिप 50 से ज़्यादा सिर्फ 2 ही पार्टनरशिप हुई, और अगर न्यूजीलैंड की बैटिंग की बात करें तो 200 रन बने 2 बल्लेबाज के, बट वहाँ पर 2 पार्टनरशिप जो थी वो 100 से ज़्यादा थी, और उसकी स्ट्राइक रेट वो भी बहुत अच्छी थी। Yeah. तो वहाँ पर फ़र्क लगा मुझे कि जो एक पार्टनरशिप बड़ी होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं हुई नहीं। एक पार्टनरशिप हुई जहाँ पर बाबर आजम और उनके साथ थे। आगा हाँ, और वो आगा ने ज्यादा स्पीड पकड़ी। आगा हाँ, ने वहाँ आगे- पर उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी अब करी। देखना पाकिस्तान ने रिसेंटली जब न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका के खिलाफ ट्राई सीरीज में 350 चेज किए, पहले 10 ओवरों में पाकिस्तान का 91 था Yeah. इन फर्स्ट 10 एंड दे चेज 350 इजी। And we did lose 3 wickets. No, we did. You did lose. Yeah, 3. yeah. रिजवान और सलमान ने आके 100 किए थे। तो मैं लेकिन क्या were there any demons in the pitch? Because it looked like New Zealand batted on a different pitch, and all of a sudden हम जब आए हैं तो it looked like it's impossible to bat on that pitch. What was really going on? यार पूजी ने बड़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है, निखिल भी इसके बाद कर देगा। इंटेंट, डर रहे हैं, अगर हारना है तो हार जाओ भाई, गो फॉर अ विन, ट्राई, गिव इट अ गो। आई डोंट वांट 60 or 90 balls. कोई मुझे तो कोई फुटवर्क भी शुरू में नहीं नजर आया। Saud I was don't want 60 or stuck in the 90 balls, crease. man, of my main player. I don't. I'd rather have him getting 35 of 40 balls and out instead of getting 64 of 90. It's not on in this day and age. Yeah, I think वो shell shock सा हो गया। जिस स्टेज पे गेम था, रिजवान was probably thinking यार यहाँ से 250, 260, 270 पे रोक देंगे, आखिरी 10 में 113, ऑल ऑफ अ सडन स्कोरबोर्ड 300 वो 21 नजर आ रहा है। एंड there's a way of going down and chasing down scores कि आने वाले बैट्समैन के लिए आपने चीजें आसान करनी है। यू हैव टू बी अ लिटिल अहेड इन योर रन चेस, जो पूजी ने भी कहा, इंटेंट, जस्ट इन अ फ्यू डिफरेंट वर्ड्स। आने अगर आप 6, 6.5 की एवरेज में आप चेस करने को देख रहे हैं, 10 ओवर के बाद वो 8.5, 9 की एवरेज हो जाती है, तो वो जो अंदर 2 बैट्समैन है वो तो छोड़िए, जो बाहर 5 बैट्समैन बैठे रहते हैं उनके ऊपर ज्यादा प्रेशर होता है कि हमारे पास तो सांस लेने का भी टाइम नहीं है। 2 बॉलें 3 बॉलें खेलेंगे, वो आस्किंग रन रेट 11 हो जाएगा ओवर अ स्पैन ऑफ 38 ओवर्स। मुझे एक और चीज समझ नहीं आई, although he scored well, what's his name, अपना young boy सलमान। Bushnell? Yeah, Salman Agha. सलमान 42 ऑफ 28। हाँ, उसने किया है, बट बाबर वेल सेट था, हिटे आके सलमान मार रहा था। ये बाबर की जो हाफ सेंचुरी है आपकी स्क्रीन पे भी लेकर आते उसने हैं। उसने उसने एक्चुअली आपको सुन लिया था सुबह कि तू अंदर रहना है, ये तू अंदर। बाबर दिस की वाज innings है। ब्यूटीफुल, दिस वाज ब्यूटीफुल। आई मीन उसको जब So you had the glimpses of greatness in that we see from Babar. जब वो अच्छा खेल रहा होता है तो देयर इज नो बेटर साइड, सिंपल इज दैट। इतना इतना खूबसूरत दिखता है। लेकिन जैसे वसीम भाई ने कहा ना कि अगर आपने 90 गेंद लेके 60 करना है तो वो दैट इज यू गोना लूज मोर गेम्स। सो दैट इज व्हाट हैपेंड इन दिस। इवन T20 में भी जब वो ओपन करता था तो वी ऑल वर स्क्रीमिंग अबाउट इट, यार ये मतलब कि ये रिजवान 50 तो कर आते हैं, लेकिन हमारा स्कोर विनिंग स्कोर होता ही नहीं है। पूजी हम डिस्कस, सॉरी मैं पुजारा से आपसे डिस्कस कर रहे थे, जब ग्लेन फिलिप्स टाइप बॉलर आया, इवन सेंटनर आया, अगर बैट्समैन के पास स्वीप नहीं है और छोटी स्वीप, लैप तो छोड़ दो, छोटी स्वीप और ये स्वीप नहीं है, तो कितना फर्क पड़ता है? बहुत ही ज्यादा, क्योंकि देखिए न्यूजीलैंड के जो बैट्समैन थे मिडिल ओवर्स में, उन्होंने जो ज्यादातर रन बनाए वो स्वीप और रिवर्स स्वीप में बनाए। अगर आपके पास देखिए वनडे क्रिकेट और T20 क्रिकेट में आपके पास आज के क्रिकेट में अगर स्वीप शॉट या तो जो छोटी स्वीप आप बोल रहे हैं पैडल स्वीप, अगर वो नहीं है तो आपकी जो स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज है वो बहुत कम हो जाती है, खास करके जब गेंद थोड़ी सी ज्यादा टर्न करती है। और जब टर्न करती है तो वहां पर स्वीप शॉट बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, कम रिस्क लेके, क्योंकि उसमें रिवॉर्ड्स ज्यादा है, रिस्क कम है। आपकी विकेट भी नहीं गिरेगी, बट आपको जो वो एक बाउंड्री बॉल की जरूरत होती है वो स्वीप शॉट से आती है। और वहां पर कहीं ना कहीं वैसा लगा कि एक तो इंटेंट, देखिए आप इंटेंट आपका नहीं है तो फिर आपका फुटवर्क भी थोड़ा खराब होता है। तो मुझे मिडिल ओवर्स में ऐसा भी लगा कि बाबर का स्पिनर के सामने जो फुटवर्क था वो खड़े खड़े ज्यादा खेल रहे थे, बॉल के करीब नहीं पहुंच रहे थे। और अगर आप बॉल के करीब नहीं पहुंच रहे हो, ड्राइव अच्छी नहीं कर रहे हो, तो बॉलर एक जगह पे गेंदबाजी करते रहता है। Why don't Pujara? Why don't you give us a bit of a display on how the footwork should be towards the वो right here, ताकि बहुत सारे जो youngsters हैं around the world that are watching this, they get this.
Pujara there will be now showing you a bit what was going on. बाबर कर क्या रहे थे और उनको करना क्या चाहिए था पुजारा? ग्लेन फिलिप्स फॉर इंस्टेंस आपको बॉलिंग कर रहा है, बिल्कुल छोटे आप स्वीप नहीं आती आपको, उसने वो बिहाइंड लेग अंपायर फील्डर रखा है। हाँ जी। तो वो अब सिंगल तो नहीं होगी वहां से। हाँ। और पीछे भी फील्डर है, तो छोटी स्वीप कैसे मारनी है? ग्लेन फिलिप के सामने जो बाबर आजम का एक तो फुटवर्क था, उनका जो पैर था वो आधा ही जा रहा था, और यहाँ पर इतना फुटवर्क के बाद या तो वो आगे भी नहीं जा रहे थे या तो पीछे भी नहीं जा रहे थे, और वहां पर वो फ्लिक करके एक रन लेने की कोशिश कर रहे थे, बट वहां पर स्क्वायर लेग का फील्डर था। तो मेरे ख्याल से जब गेंद आउटसाइड दी ऑफ स्टंप होती है, ऑफ स्पिनर अगर गेंदबाजी कर रहा है, तो वहां पर ये जो पैडल स्वीप है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप एक तो ऑफ स्टंप के बाहर चले जाते हो, वहां पर लाइन पिक करके जो ये स्क्वायर लेग का फील्डर है उसके पीछे फाइन लेग की तरफ ये जो बैट है वो आगे लेके ये जो शॉट है वो कम रिस्क वाला है। और उसके साथ में वनडे क्रिकेट में अभी रिवर्स स्वीप भी ये अच्छा ऑप्शन है, सिर्फ आप टैप करें, अगर जोर से भी नहीं मारे तो रिवर्स स्वीप, वो भी पैडल वाला, या तो नॉर्मल स्वीप पैडल स्वीप, तो वो शॉट खेल सकते थे। और दूसरा, गेंद के जो करीब जाना चाहिए था वो करीब नहीं जा रहे थे, क्योंकि ड्राइव ऑफ स्पिनर में अगर आप थोड़ा सा ज्यादा लंबा पैर निकाल के गेंद के करीब पहुंचते हैं तो वो मिड ऑन और मिड ऑफ के साइड ड्राइव शॉट जो है वो ज्यादा लगती है। पुजी बतौर ऑफ स्पिनर, क्योंकि 40 ओवर तक मिड ऑफ का फील्डर जो है वो 30 यार्ड के दायरे के अंदर रहता है, तो ऑफ स्पिनर बहुत कम ऑफ स्टंप के बाहर बॉल डालता है, बट ग्लेन फिलिप्स, ब्रेसवेल दोनों बाबर को ऑफ स्टंप के बाहर बॉल डाल रहे थे। एक बारी स्टेप आउट करके मिड ऑफ के ऊपर से चिप शॉट ट्राई भी नहीं किया, जैसे सलमान ने मारा। अगर स्वीप नहीं भी हो रहा था, वुड दैट बी अ बेटर ऑप्शन? बिल्कुल, क्योंकि जब मिड ऑफ अंदर है, आप अगर खड़े खड़े खेल रहे हैं तो बॉलर के पास एक ऑप्शन है कि वो वहीं पर गेंदबाजी करेंगे। जब आप स्टेप आउट करते हैं तो अगेन जो बात कर रहे थे कि बॉल के करीब और फिर मिड ऑफ ऊपर है, तो आप एक बार मिड ऑफ के ऊपर से शॉट मारने की कोशिश करेंगे तो उनकी जो लेंथ है वो चेंज हो जाएगी। तो आप बॉलर के ऊपर अगर दबाव नहीं बना सकते, उनके ऊपर प्रेशर नहीं डाल रहे, तो वो एक जगह पे गेंदबाजी करते रहेंगे और आप एज अ बैट्समैन आपके ऊपर प्रेशर ज्यादा बन रहा है। तो जो एक सिंगल खोलने की बात होती है, तो आप अगर एक बाउंड्री बॉल मारते हैं, मिड ऑफ के ऊपर से मारते हैं, तो फिलिप की जो गेंद है वो थोड़ी वो छोटी डालने की कोशिश करेंगे, तो आप बैक फुट पे जाके मिड ऑन पे या तो मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच में वहां पर भी फ्लिक कर सकते हैं, बट उनकी जो लेंथ है वो चेंज करना बहुत ही जरूरी है। पुजारा एक चीज है कि वजह क्या है, व्हाई आई मीन सच अ क्लासी बैट्समैन, ये तो नहीं हो सकता ना कि ऑफ स्पिनर या लेफ्ट आर्मर से वो हर वक्त ही फंसा है, 20-100 है उसका, ऐसा तो नहीं उसको नहीं आता, लेकिन क्या वजह हो सकती है कि वो इस तरह खेल रहा था? मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं मेंटल प्रेशर, क्योंकि एक जो फ्रीडम होना चाहिए वनडे क्रिकेट में बल्लेबाज के पास के, मुझे सोच के बल्लेबाजी नहीं करनी है, मुझे सिर्फ जाके अपनी नेचुरल गेम खेलनी है। तो उनकी जो नेचुरल गेम है वो स्ट्रोक प्लेयर है, ऐसा नहीं है कि वो इतने ज़्यादा डिफेंसिव प्लेयर है, बट वो जो माइंडसेट है उसको उसमें बदलाव लाने की ज़रूरत है। आप थोड़ा फ्रीडम से बल्लेबाजी करें, और वनडे क्रिकेट में स्ट्राइक रोटेट करना और बीच में एक बाउंड्री मारना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपकी स्ट्राइक रेट 70 या तो 80 की है, वो आज के ज़माने में एक्सेप्टेबल नहीं है। आज 90-100 की स्ट्राइक रेट तो मिनिमम चाहिए, और उससे ज़्यादा वनडे क्रिकेट में। तो पिच इतना मेरे ख्याल से इतना डिफिकल्ट नहीं था, बट इंटेंट जो था, अगर वो ही इंटेंट में वो आउट भी हो जाता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैच तो वैसे भी टीम हार रही है। तो खुद के बारे में, खुद के रन के बारे में नहीं सोचना है, बट आपको कैसे बल्लेबाजी करनी है उसके बारे में सोचना है। All right, that's fantastic. Thank you so much, Pujara. We really appreciate it, and we. Oh, you can come up, join us. वापस आ जाएं भाई, वापस आ जाएं. Thank you so much. That was outstanding. That was really good. It's very good insight into that. But और तो कुछ नहीं. खुशदिल इनिंग was थोड़ी बहुत दिल को खुशी हुई. खुशदिल ने कुछ अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग करने की कोशिश की. Maybe if he had a too late then. Yeah, well done खुशदिल. He's got some confidence back, his mojo back. Maybe अगले मैचों में अब वही हाल आ गया. पूछ क्या? ये खुशदिल को देख लेते हैं पहले। हाँ, फिर थोड़ा बहुत दिल खुश किया इन्होंने हमारा वकार। खुशदिल ने खुश हो जाएं, आप भी जाग जाएं और खुश हो जाएं थोड़े। देखिए, इसके पास स्ट्रोक्स हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा समटाइम अजीब सा लगता है, लपक के खेलता है जरूर है, लेकिन ये जब शॉट मारता है तो इसकी शॉट में जान होती है। यू नो, मोर और लेस क्रिकेट इनकी खत्म हो गई थी, इनको घर से बुलाया गया टू प्ले दिस। घर से बुलाया गया। आई डोंट थिंक he was kind of you know, he was disheartened actually, to be very honest, क्योंकि अभी ये डोमेस्टिक टीम में मेरी टीम से था, he was very disheartened and not fit to play even domestic, but he worked hard for the last couple of months.
बट ये ही इज गॉट टैलेंट, ऐसा नहीं है कि नहीं है। लेकिन इसको जो पुजारा ने बात की थी ना, इसको आप 5वां बॉलर नहीं ट्रीट कर सकते। वही, He's got to be the 6th bowler maybe who can bat a little. But और it's ये too late now, the squad तो अनाउंस हो गया हुआ है। हाँ, तो स्क्वाड हाँ, देना और ये अच्छी बात है या बुरी वो पता नहीं, क्योंकि उन्होंने रन बनाया तो वो स्क्वाड से बाहर तो नहीं जाने वाले, तो फिर जो आप बॉलिंग में वीकनेस है वो चेंज नहीं होने वाली है। और एक तोप स्टैट आया एक और, सुफियान मुकीम जो अपना पहला मैच खेला है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, 4 आउट किए पहले मैच में 4, और उसके बाद से अभी तक वनडे नहीं खेला। कमाल है। अच्छा, एक और बड़ा तोप स्टैट है, ये एक्स्ट्रा एक और तोप स्टैट ये है कि सऊद शकील ने आज तक वनडे के अंदर कभी ओपनिंग की नहीं, फर्स्ट क्लास में भी नहीं की। वो जैसे हमारे कमेंटेटर कह रहे थे आज खुशदिल शाह ने स्कोर किया ना, कि आज इसको ओपन करानी चाहिए थी। है वो वाइल्ड गैस। कौन? हमारा कमेंटेटर, कौन कमेंटेटर था? बाजिद खान। बाजिद ऐसी बात नहीं कर सकता। चलो मैं ना लैन तो रहा ना उदा। अच्छा चलो ठीक है, ना लो सर, ना लो। I can understand there are certain sensitivities Not sensitivity, he said कि अब ये नहीं कि जो स्कोर करेगा उसको ओपन करा दो। ओपन मेरा मतलब है खाला घर थोड़ी है, कोई उठ के ओपन कर लेगा। and I don't think so कि खाला के घर में भी anybody can get up and open. You can get a roti maybe. Yeah, you can. It's not going to happen there either. It's very वो। खाला से याद है आप लोगों की तरफ भी फुफ्फो का और खाला का रोल होता है बहुत बड़ा। जी बिल्कुल, उनको भाई ये मौसी कहते हैं खाला को, राइट? हाँ, बुआ बुआ। 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 देखिए जी, बुआ बुआ जी कहते को शादी में बड़ा खुश रखना जरूरी है कि खाना ठीक है नहीं है। Yeah. वो हमेशा ही नाराज रहते हैं। लव यू बुआ, बट Good comeback. good comeback. बट दैट्स द फैक्ट। कर दिया। हाँ, मैं समझ गया हूँ। बेसिकली फुप्पो और खाला का जो किरदार है वो यूनिवर्सल है। वो जहाँ इंडिया हो या पाकिस्तान हो, वो बिल्कुल वैसे के वैसे ही है। और एक और चीज मैं आपको बताऊं कि ब्रेक का भी जो किरदार है वो पूरी दुनिया में एक ही है। ब्रेक लेनी इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर हम ब्रेक नहीं लेंगे तो इश्तिहार नहीं चलेंगे, अगर इश्तिहार नहीं चलेंगे तो पैसे नहीं मिलेंगे, अगर पैसे नहीं मिलेंगे तो हमें तनख्वाह नहीं मिलेगी। So we're going to take a break and we'll see you on the other side. You're watching the DP World Dressing Room. Stay with us. Welcome back to the DP World Dressing Room. मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं 10 Sports, our continued coverage of the ICC Champions Trophy 2025 and the news out of Karachi. पहले हम बात करते हैं DP World Beyond Boundaries Initiative की. Now, this is the Beyond Boundaries Initiative. It's a very special initiative done by the DP World. In 2023 ICC Men's Cricket World Cup, DP World launched this Beyond Boundaries Initiative. It's a global mission to make cricket more accessible at grassroots levels and by the provision of kits and equipment to young people, to new players or budding players. And this is fronted by the DP World Cricket's global ambassador, Sachin Tendulkar, the legend himself. Now, DP World pledged to give 50 repurposed shipping containers stocked with cricket kits to be distributed across the globe. Plus, during ICC events, and just like the Champions Trophy, including this year's Champions Trophy, DP World has pledged to deliver 10 cricket kits, complete cricket kits. That's bat, bag, helmet, everything. For every 100 runs, there are 10 kits. So, आज का जो total आपने देखा है कि there is the 320. So that's 30 kits from the New Zealand innings and 200 something from Pakistan. So that's 20 kits. So altogether, 50 kits will be given at grassroots level. And that is the DP World Beyond Boundaries initiative. And with that, it is time now to take you to the dispatches of the day, brought to you by DP World. But there you go. New Zealand today were really fantastic, and they were getting those boundaries. It looked like at one point that this score will be under 260, but especially in the last 10 overs, the onslaught brought by the Kiwi batsmen was just fantastic. So wonderful boundaries there, and then some by Pakistan as well. We saw intent from Pushdil and Salman Agha, and then of course there were those classic drives by Babar Azam as well. However, Pakistan fell short, and that is your dispatches of the day, brought to you by DP World. Time for the fastest delivery of the day, brought to you by Food Panda. आ भी जाओ।
There you go. Who else but Haris Rauf? That was 145.3. That's fantastic stuff there from Haris Rauf. And when he generates pace, he really generates pace. And that was the fastest delivery of the day, brought to you by Food Panda. And it's time for the DP World Smart Performance Stat. Let's take a look at the Smart Performance Stat by DP World coming up on your screen. That's a Glenn Phillips ODI record in Pakistan. Just look at that. That's just outstanding. 318 runs in 7 innings on your screen. That's fantastic. I'm looking here because the screen is here. That's why I'm like that. And that is your smart stat of the day, brought to you by DP World. And it's time for Yaqeen Ki Jeet, brought to you by Coca-Cola. Well, I don't think we have the... All right, so that's just Yaqeen Ki Jeet. Yaqeen Ki Jeet by Coca-Cola. We have absolutely no bumper or no animation for it. It is the first day. Please do excuse us. We are going to get our act together once we have a post-production meeting. Wasim, Yaqeen Ki Jeet. There's going to be talk about it. Don't you worry. Meeting. They are all going to hear it from me. You know, Wasim, by the way, last time round, you used to be responsible because the channel that we used to be on, you were the president of that channel. Still am. You still are? Yeah. Oh, but you're sitting on this channel. No, because I working Channel to badalte rehte Let's. hain. Why are we talking about this? I just thought because, you know, this is going to fall on me. काम दी गल कर ले. The काम दी gali kar raha sab. You are evasive here. Defensive and evasive, Wasim Akram. Right, Janab, Yaqeen Ki Jeet by Coca-Cola. This is where we talk about that, you know, we still got to have faith. Bakar, आज की commentary में एक बड़ी जबरदस्त बात हुई थी. और वो आपने कहा था, that's a very good comment by the commentator when he said they did not believe in the first overs of batting Pakistan. And you said that's a good comment. Yeah, that was very obvious. Yeah. Because वो intent, पुजारा वाली बात के intent थी नहीं. I mean, नहीं, $1 million क्वेश्चन है कि इंटेंट कौन दिलाएगा, कैसे आएगा, क्या करेंगे भाई? हाँ, कहाँ से मिलेगी? ये हम कह तो रहे हैं, पर लोगों ये भी लोग सुनना चाहेंगे ना, इंटेंट कैसे आएगा? अच्छा, वैसे उर्दू में बताएं इंटेंट को किस तरह बयान किया जाए. चलें, इसको जरा और थोड़ा सा पुश करते हैं आगे. लफ्ज तो शायद मुझे ना मिले, लेकिन इंटेंट का मतलब यही है कि आपकी जो इरादा जो है ना, पुख्ता होना चाहिए. वो आपका इरादा ये होना चाहिए कि मैंने आपकी जो फर्स्ट इनिशियल थॉट व्हाइट बॉल क्रिकेट में ये होती है कि आप यू लुक फॉर अ बाउंड्री 6 or 4, इट्स अप टू यू. You look for that, जैसे फखर करता है, you look for a boundary, and then if it's a good ball, you push, you look for a run. Somewhere, single मिले, 2 मिले, फिलिप्स ने करके दिखाया ना, intent से किया ना runs. पहले intent ये थी कि जी मैंने, I'm just coming after you, and then if you bowl a good ball, I'll just nudge you for 4, you know, for a single or 2. Right. So I think that intent was missing. हम लोग, I mean, अगर ऊपर उठा के देख लेंगे, 19 गेंद खेले अपना, शाहिद शकील ने 6 रन, 90-64 तो आपने देख ही लिया, 14 गेंदें खेली, रिजवान ने 3 रन बनाया. तो आपको ये कहीं ना कहीं आप जब चेस कर रहे हो ना, सवाल ये होता 240-250 मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, ठीक है, यू नो, यू टेक योर टाइम, यू टेक एक्स्ट्रा टाइम. लेकिन जब आप 320 चेस कर रहे हो ना, तो फिर ये क्राइम है. और ऊपर से अगर आपने क्राइम कर दिया तो नीचे तो फिर तवक्को ना करें. अब वही सिचुएशन है. सॉरी पूजी, आप नहीं, मेरा इंपॉर्टेंट नहीं है. हाँ, आप करो. मैं ये बोल रहा था कि जो अप्रोच की जो बात कर रहे हैं, तो काफी बार आप विकेट बचाने की कोशिश कर रहे हैं. देखिए, शुरू में आप वनडे क्रिकेट में विकेट बचा के आप गेम नहीं जीत सकते. विकेट गवा दिए तो कोई बात नहीं, बट जो रन रेट है उसको ऊपर ही रखना होता है. और पहले 10 ओवर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फेज होता है वनडे क्रिकेट का. वहां पर अगर आप बच के खेलने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे आउट नहीं होना है, डॉट बॉल्स अगर खेल लिए तो कोई बात नहीं, बट उसका फर्क गेम में बहुत ज्यादा पड़ता है. और बाहर बैटर्स में प्रेशर आ जाता होगा जो 5 पे बाहर बैठे होते हैं. और उनके पास समय नहीं है ना, क्योंकि जब वो आते हैं तो उनसे एक्सपेक्टेशन यही है कि आप 100 से ज्यादा 120-130 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करें. और आपके जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन हैं उनकी स्ट्राइक रेट 70 या 80 की है, तो वो एक्सेप्टेबल. जो समय की बात कर रहे हैं ना, समय बांट के खाओ ना, थोड़ा तुम ले लो, थोड़ा नीचे वाले के लिए छोड़ दो. ऊपर से अगर आप ज्यादा समय ले लेते हैं तो फिर नीचे वालों के लिए कुछ नहीं रहता. यार मैं 60 साल का हो गया हूँ, अब सिचुएशन वही आ गई, ऑलमोस्ट 58. 5 साल से आप 60 पे फंसे हुए हैं. वो विकी है. वो वही सिचुएशन आ गई. वो जीतणगे, वो हारेंगे, बारिश आएगी, तूफान आएगा, जलजिला आएगा, जान नमाज आएगी, दुआएं करेंगे तो टीम आ जाएगी. हम कभी सीधे क्वालिफाई नहीं कर पाए. अब वही सिचुएशन फिर आ गई है.
Yeah, I know. I don't know what to say to that, but anyway, that was Yaqeen Ki Jeet, brought to you by Coca-Cola. And with that, it's time for fall of wickets. Let's take a look at the fall of wickets of the Pakistan team on your screens. This should be interesting. That was no. I didn't see that. Front foot coming. Yeah. नहीं फ्रंट फुट नहीं है, ये प्रेशर बिल्ड हो गया हुआ था। आपने इतने सारे जब बॉल खेल ली हो, ये अच्छा कैच जरूर हुआ, इसमें कोई शक नहीं है, ब्रिलियंट कैच, बट इट वाज ओनली अ टैप, इट वाजंट रियली हिट हार्ड। दैट वाज अ गुड डिलीवरी आई थिंक, क्योंकि दिख रहा था कि जिस तरीके से वो खेल रहा था मिस करेगा, और सलमान अली आगा ने थोड़ा सा उम्मीद 5-10% दिलाई थी, और वो भी जाती गई, तैयब आया और गया। आई मीन उसके बाद तो आना जाना ही लगा हुआ था, सिर्फ कुछ दिन एक थोड़ी सी अच्छी इनिंग हो, वो तो उम्मीद भी नहीं थी वहाँ पर, तो क्योंकि आप जितना भी अच्छा खेलते इतनी बड़ी जो आप रन रेट चेस कर रहे होते हो, तो फिर एक आधा फॉल शॉट हो जाता है। अब 60 रन से हारना आपके रन रेट में ही फर्क पड़ेगा, नेट रन रेट में बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। अब आपके 2 मैच हैं बाकी, एक आपका इंडिया से है जो टॉप टीम है, जो फेवरेट है जीतने के लिए, दूसरा बांग्लादेश से, वो भी बुरी टीम नहीं है, टॉप 8 में है वो। सो या इट्स टच एंड गो नाउ। Yeah, it is. It's going to be pretty challenging. Those were your fall of wickets. And with that, it is time for us to take a break here on the DP World dressing room. But when we come back, bada zaruri hai, hashtag ask the room. Hashtag ask the room. Now, iske saath, is hashtag ke saath apne sawal hame bhej sakte hain on X and on Facebook and on Instagram as well. And if you can't get a hold of anything else, you can send it directly to Wasim Akram's Instagram or my Instagram or Facebook pages. आप उसमें कहीं पे भी हमसे सवाल कर सकते हैं, मगर साथ में hashtag ask the room की वकार। तो वसीम भाई का नंबर ही दे दो ना डायरेक्ट। Right. 0333 0333 आज के बाद दोबारा ना मिलना। That's the number. So here's the most important thing is hashtag ask the room में जो सबसे बेहतरीन सवाल होगा ना आज का, उसमें हम सब जो है फैसला करेंगे कि किसका सबसे अच्छा सवाल था। उसके लिए one of the guests is going to sign that DP World ट्रक के ऊपर रखी हुई जो बॉल आपको नजर आती है, उसको वो साइन करेंगे, और जब आप उसको साइन करेंगे, हम चारों साइन करें। आप चले, वसीम कहते हैं कि चारों साइन करेंगे, which is great. We'll sign that and one of the guys is going to win that. We'll decide कि ये बॉल किसको मिलना है, जो signed by all the 4 guests. We are going to send it across. It will be dispatched to you by DP World. And with that, let me dispatch you all to a break. When we come back, it is hashtag Ask the Room. Don't go away. Stay with us. Welcome back to the DP World dressing room, and what you see on your screens is the fixtures for Pakistan coming up next. A big match. That's Pakistan versus India. Dubai से बराह रास्त आपके लिए आएगा 23 फरवरी को, and then it is Pakistan versus Bangladesh, which is going to be their second match in Rawalpindi on the 27th of Feb. It's not going to be easy now. There's a lot of pressure on Team Pakistan. I have a question. Yes. You finish? Yeah. My go ahead. question to Pakistan, विकी आपसे भी है कि हमने अभी पाकिस्तान ने ठीक ठाक मुबारक भी दी, हमने स्टेडियम नया बनाया है लाहौर का, उसको उसकी कैपेसिटी बढ़ाई, आई थिंक 25 से बड़ी की, लुक्स स्टनिंग, ग्रेट जॉब। पाकिस्तान तो उसे मैच ही नहीं का। मैंने भी नहीं समझ आई वैसे। That's really, it is a very वकार, आप इसके ऊपर रोशनी डालें कि हमने इतने खूबसूरत स्टेडियम बनाया है लाहौर के अंदर, इतने उसकी हमने तारीफ की, इतनी वो बात की, मगर उसमें पाकिस्तान का कोई भी मैच नहीं है। आई नो, मुझे नहीं पता इसका जवाब। नहीं, इसका सिस्टम क्या होता है कि जैसे होस्ट कंट्री है, नहीं विकी, जैसे होस्ट कंट्री है फॉर इंस्टेंस पाकिस्तान है अभी, तो वो आईसीसी को भेजती होगी कि ये 3 वेन्यूज हैं, आइडियली अगर हमें पाकिस्तान का मैच यहाँ मिल जाए। As per my knowledge, I think it's ICC and scheduling committee जो बनाते हैं। शेड्यूलिंग कमेटी आईसीसी की होगी जी, और लोकल, लेकिन बोर्ड का तो उसमें बहुत ज्यादा इनपुट होगा ना। 100% of course कि कैपेसिटी के हिसाब से, because ticket sales, everything, security, and इतने सालों के बाद हो रहा है, everything obviously comes into play. Maybe Pakistan was expecting India to come to Pakistan and they'll play India. नहीं, वो डिसाइड, that didn't happen. स्केड्यूल तो उसके बाद डिसाइड हुआ जब इंडिया ने कहा I don't know ये पहले हुआ या बाद में हुआ है। स्केड्यूल तो बाद में आया है। बाद में But yeah, it's थोड़ा सा समझ में नहीं आई ये बात।
वो ऐसे टची सी बात आपने कर दी है कि इंडिया को हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। निखिल, लेट मी आस्क यू दिस, क्योंकि बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि भाई आप हमारी तरफ नहीं आए यार, क्यों नहीं आए यार आप? सर बाजी मैं तो आ गया ना मेरे वर्ग का जवाब मिले ना तुम। बिल्कुल मेरे साफ पता चल गया। आई कैन सी ही इज कैचिंग, यू रबिंग ऑन टू, यू नो, रबिंग ऑफ ऑन हिम बेसिकली। कोई चीज पता ही नहीं की करे बंदा फिर। आई नो You have to come out with yeah. कई बार बाजी कहते हैं ना मजा नहीं अब आप पे ग्रेड पढ़ दो से मजा नहीं आता अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच वो वहां से यहाँ पर पास ऑन हो रहा है, तो मैं भी वही कहूंगा कि देखिए क्रिकेट जो डिसाइड कर रहे हैं वो उनके ऊपर छोड़ सकते हैं, और बाकी जो मैं कह सकता हूँ वो गेम इज बिगर देन एवरीथिंग। तो I agree गेम with you. हो रही है, वो बहुत ही बड़ी चीज़ है, और चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है और सारी टीमें जो इम्पोर्टेंट टीमें हैं वो खेल रही है, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट। और कुछ हो ना हो, कम से कम ड्रेसिंग रूम में बहुत प्यार मोहब्बत है हमारा आपस में, जो है ना वो चल रहा है। देखिए अभी तक ना मेरी किसी से खाने पे लड़ाई हुई है वसीम, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आज ना लंच पे ना डिनर पे कोई मसला। बिकॉज उसको मैंने देखा है पहला आज, दिन है। आज भाई को देखा है दोपहर को ना इतनी सी प्लेट लेके आ गया। मैं कहा तबीयत ठीक है तेरी? कहना मैं आज से हेल्दी खा रहा हूँ, तो ਉਹਦੇ ਚ ਐਨਾ गोश्त ਪਿਆ ਸੀ। भाई मैं तो गोश्त इसलिए था क्योंकि जो दूसरा खा जाता था मेरा सारा गोश्त बोटियां, उसका आज मेरे पास कोटा पूरा आ गया। यानी कि नहीं मैं तो पहली बार ही आया है। बुआ वंस अगेन आई लव यू भाई, सॉरी नो डिसरिस्पेक्ट भाई, खिलाया गया खाने ते लड़ाई करता है। ए आज मुझे लगता है बुआ ही मनांदा रहेगा। 3 माफी मांग चुके हैं। पर भाजी का खाने से मतलब क्या है? ये भी मतलब खाने से जल्दी उठ जाते हैं। एडिक्शन। हाँ बिल्कुल मैंने वैसे उसको बताया कि ज्यादा खाने से कोई नहीं मरता, सॉरी कट खाने से कोई नहीं मरता। ये तो बट नहीं मानते। चलो बाकी उनका भी डायलॉग है ये। या All right, Wasim is really engrossed in his phone because he's looking at hashtag Ask the Room. Ask the Room का time आ गया, and we're going to give this one ball signed by all the 4, as you said, Yes, Wasim. So why don't yes, you of just course. sign this? Hashtag Ask the Room का time आ गया, and we have a lot of questions that are coming. So the panelists are signing the ball, and I'm going to open the questions सबसे पहले. Right, Janab, the first question that I am going to bring out is from Fahad Latif, just Fahad Latif. And the question that comes from Fahad Latif is, we can debate endlessly about what went wrong with Pakistan, but if I had to pinpoint one major issue, it's the lack of cricketing IQ. Our players struggle with basic game awareness, smart decision making, and adapting to situation. Can this be coached, Waqar? Because आपने आज कहा कि Rizwan made a lot of mistakes as a captain. इसकी हमने डिस्कस किया था इसका, मैं पहले इसका छोटा जवाब दे दूं। फहद वही, लतीफ, आप बड़ा फहद, जवाब दे आप बिल्कुल आपने वैलिड क्वेश्चन पूछा है, और ये क्वेश्चन हमारे जहनों में भी होता है। बट कोच आपको सिचुएशन अवेयरनेस नहीं सिखा सकता, वो आपने खुद सीखनी है। yeah. अब कोच तो नहीं आएगा ना सिचुएशन में। वो आपने जिक्र किया था जैसे खुशदिल सा 10 कदम आगे खड़ा था, ऊपर से छक्का हो गया आखिरी ओवर में। आई थिंक हारिस राउफ बॉलिंग कर रहा था। अब वो मुझे पता है एज अ फील्डर के आखिरी ओवर है, वो 325 लगा हुआ, उसने हर गेंद पे मारना है, तो मैं बाउंड्री से आऊं। ये कोच नहीं बता सकता, ये इन्होंने खुद सीखना है। Yeah. बिल्कुल अग्री करता हूँ, क्योंकि काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है कि जो आप जब फील्ड पे है ऑन द स्पॉट डिसीजन लेना होता है, और पावर प्ले में कैसे बल्लेबाजी करनी है वो सबको पता होता है। तो पहले 10 ओवर में आपको, जब आप 300 से ज़्यादा रन चेज कर रहे हैं, तो वहाँ पर कोच को आके बताना नहीं है कि आपको हर एक गेंद में रन बनाने की कोशिश करनी है। Exactly. All right, Wasim, I'm going to ask you to do the honors of setting it up on the DP World truck, the ball right that now? has been signed. Yeah, जी, अभी रख दें. Let's Right. have that on the truck that will be dispatched. This ball will be dispatched to the winner by DP World. Thank you so much, Wasim. There you go, Wasim. Well done. Beautiful. Thank you. And the next question. Acha, what we're going to do, guys, is that I'm going to bring one question to one panelist. Okay. Let's not do discussion because we want to take as many questions as possible. Okay. Right, Janab. Agla question hai Kevin D. Biryani ka. What is Tayyib Tahir's role in this team, Waqar? I think the guy has performed, heavily in the domestic cricket, and he's been given the opportunity, and he's not a bad player. Unfortunately, आज वो But runs he's नहीं a कर proper सका. batsman. He's a proper batsman. He should come at number 4, 5, 6. He can. 6 पे नहीं आना चाहिए उसको। मुझे ऐसा लगता है कि इसको थोड़ा सा ऊपर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। Exactly. क्योंकि मुझे रिजवान का ये होता है कि रिजवान स्पेशली जब आप कीपिंग कर लेते हो ना शुरू में, और फिर उसके बाद आपको अचानक आपकी बारी आ जाए 3 पे या 4 पे अगर आप आ जाओ, तो ये हार्ड वर्क हो जाता है, बहुत मुश्किल काम है 50 ओवर की फील्डिंग करने के बाद सीधा। तो कहीं ना कहीं मे बी यू कैन प्रमोट हिम अप द ऑर्डर एंड टेस्ट हिम। ही इज अ गुड प्लेयर, आई हैव सीन हिम गेटिंग रन्स. He's a busy player, he plays really well against the spinner also.
पेसर का मुझे अभी उतना नहीं उसको आइडिया, लेकिन मैंने इसको स्पिन के अगेंस्ट खेलते देखा है, प्लेज रियली वेल। Alright, जनाब, अगला सवाल है राना राइट्स का सवाल है, do you think Pakistan's decision to bowl first today was a mistake considering it was tournament's opening match and the Pakistan team usually struggles while chasing, and this is for you, Nikhil Chopra. आई थिंक देखिए, कप्तान ने टॉस जीतने के बाद कहा भी था कि हम ये फैसला इसलिए ले रहे हैं क्योंकि शाम को अगर ओस आ रही है, ऑब्वियसली वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, ओस के चलते ही फेल्ट कि मेरी बैटिंग लाइनअप जो है दैट कैन टेक ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड सूखे बॉल से मेरे बॉलर्स बॉल डालेंगे तो हम 260 270 पे रोकेंगे और फिर वो चेस कर जाएंगे। बट न्यूजीलैंड, ऑल क्रेडिट टू देम, दे प्लेड आउटस्टैंडिंगली वेल। सो आई गेस समटाइम्स यू गो इन विद अ प्लान with a positive frame of mind, but you just simply got outplayed. मेरे ख्याल में अगर सेंटनर भी टॉस जीते तो गलत नहीं होता कि वो भी पहले गेंदबाजी ही कर रहे होते, पॉसिबल, वो भी चेस कर रहे होते। Right, okay. Wasim, ये you have a क्वेश्चन का हैंडल मैं क्या पढ़ूंगा? इस क्वेश्चन का हैंडल है SJQ_76, वो ऊपर SJQ_76। तेरा ना ही हो जाए कि तेरा क्वेश्चन भी ओडे ही कोड़ा है। क्वेश्चन की कड़वा। हाँ। डोंट टॉक अबाउट 92 वर्ल्ड कप। अब बात ही उसकी करूंगा मैं। याद है 92 वर्ल्ड कप में जब इमरान भाई ने हमें ये कहा था, आगा वो पिछला क्वेश्चन, आगा बाता शो है स्टार्टेड, आगा बाता शो है स्टार्टेड। बड़े कौड़े बाबे ने पाकिस्तान इस भाई जहरीले। Alright, जनाब, अब्बास बाबर #Askuru में सवाल है, सलाम नमस्ते to the panel and Agha Batra duo back alongside two other legends of the game. Question, will this loss demoralize Pakistan ahead of the India game or will it add even more motivation? Been watching you guys from Brussels. PS, menu today. Menu मैं नहीं दस सकता, लेकिन सवाल अब्बास बाबर का, क्या पाकिस्तान को ये मजीद प्रेशर में डालेगा या मोटिवेट करेगा इंडिया के खिलाफ मैच पे? मेरे ख्याल से प्रेशर ज़्यादा बनेगा, क्योंकि जब आप बड़े मैच के लिए जा रहे हो और जो ट्राई सीरीज़ हुई वहाँ पर भी प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं रहा, तो बड़े मैच से पहले कॉन्फिडेंस मिलना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो बॉलिंग में भी कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हुआ है और बल्लेबाजी में भी कॉन्फिडेंस कम हुआ है, तो बड़े मैच से पहले मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान टीम का कॉन्फिडेंस ये मैच की वजह से थोड़ा सा कम हो जाएगा। All right, thank you. And with that, Raza Sehgal का सवाल है, should Aqib Javed resign from the selection committee? He has selected the worst squad possible with part-timers and no specialist openers. Who is responsible? Wasim. Raza Sehgal. एक बंदा रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आपके 5 सेलेक्टर भी हैं आकिब के साथ। वो क्या अपना खजूरे बेचने आए हैं? अजहर अली है, असद शफीक है, अलीम डार है, रैंडम an umpire in speaking Pakistan team doesn't I don't know why he's there, but and आपका then एक फ्रेंड भी है ना? हाँ, आपका एक फ्रेंड भी तो है, कौन? चीमा। हसन चीमा। फ्रेंड तो नहीं कहूंगा, एक्स कोलीग है मेरा, बट वही। उनका उसका काम सिर्फ ये नहीं है कि स्टैट्स देना, जैसे हमें स्टैट्स आते हैं, लो जी स्टैट्स में। नहीं, मैंने आप सेलेक्टर्स गिन रहे थे, मैंने कहा आप नहीं वो भी है पार्ट ऑफ द ये सिलेक्शन। एक्चुअली ना वकार है ना, बड़े सीरियस मुंह बना के मुझे ना पता भी। पहली विकेट शॉट खेलने की कोशिश की थी एंड ठा करके कवर ड्राइव मारने की कोशिश की थी है टू वसीम अकरम। So ये वसीम भाई ने selector Why है। so serious ठाकुर? वसीम भाई ने बहुत सारा टाइम गुजारा है उसके साथ। मैं इसलिए 2 कह रहा साल हूं। गुजारे हैं विकी। वो 2 साल पर लॉन्ग पीरियड। I mean 2 साल से मुराद 1 month a year। He's getting So away with coming back to murder. the question, it's एक बंदा आज आके हम कोच को सैक करते हैं, खेल तो प्लेयर रहे हैं ना यार। हाँ। अब टीम उसने पिक किया, बाकी सेलेक्टर्स भी हैं, फिर सब जाएं। पहले टूर्नामेंट तो मुकले यार इतनी जल्दी तुमने इतनी जल्दी नहीं हो पूछ लिया ये। सकता। Alright, जनाब, अगला सवाल है खिचड़ी आपका है Ahmed786_ और सवाल है, during the last 3 to 4 years Pakistan played every big event with same 3 fast bowlers and unfortunately won the honor of being the first team out of every team. Can they, the 3 bowlers, be dropped? This is from Ahmed786. Wakar, to you. बात बड़ी वैसे बड़ी खिचड़ी Ahmed786. पकाती ना 7-8. So Can look, they be? I mean, can they be dropped? you can't drop them now. Right. We're in the middle of the tournament. No, future की बात, tournament की बात course करें है, basically. You know, Performance ये स्पोर्ट ऐसी है, ये परफॉर्मेंस बेस्ड Any है। sport, I It doesn't matter who individual is, what name that individual carries. Is that you perform, you stay, you don't perform, you go. Simple as that. So अगर performance इनकी अच्छी नहीं है, तो there are players or bowlers वो who are लेफ्टी आप बता रहे थे बड़ा इंप्रूव हुआ। Aqif Javed. He's improved a lot. He is very Snippy. good. Mohammad Ali, I thought he's bowling really well. So I mean,
इन द मिडल ऑफ द टूर्नामेंट तो हम ये बात करना गलत है कि ये इनको ड्रॉप किया जाए, बट ऑफ कोर्स अगर ऐसा ही परफॉर्म करते रहेंगे तो आगे सेलेक्टर जरूर सोचेंगे. All right, last question before we go to a break. This one is from Swajot Singh, Sway X. Swajot Singh is asking Asaroom, I felt India-Pakistan game was playing more on Babar's mind. The way he was taking time during his innings today than playing to the occasion. So he wants Wasim Akram, you to take on this thought. क्या नाम बताया था इनका? Swajot Singh. स्वजोत, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार. हाँ, क्वेश्चन क्या था? सवाल ये है कि यूं लग रहा था कि बाबर जो है उनके दिमाग में इंडिया पाकिस्तान का मैच का दबाव था और वो इसलिए जो थे वो that was playing up on his mind and that he was not playing to the occasion today. I don't think so. I was just general pressure था. 320 चेस करना था. आपका मेन ओपनर फखर ओपन नहीं आ रहा था बिकॉज 20 मिनट से ज़्यादा उसने टाइम बाहर गुजार लिया है, तो फिर नंबर 4 पे बैटिंग कर सकते हो. सो ये चीज़ें हुई हैं. आई डाउट कि उसके वो 3 दिन बाद का मैच उसके ज़हन में होगा. उसके ज़हन में इस वक्त मैच वही था जो खेल रहा था, वो जो भी खेला है, वी ऑल नो. All right, with that, it's time to take a break right here on the DP World Dressing Room. But hashtag Ask the Room will continue after this break. Stay with us. You're watching 10 Sports. ये बड़ी पुरानी फिल्मों से. All right, welcome back to the DP World Dressing Room. I'm Fakhar Alam. You're watching 10 Sports. Sorry, पूछ just ले before coming in, we had देखी जाएगी. hashtag Ask the Room में एक सवाल आया है जो वसीम ने देखा है. वसीम को क्या सवाल था? और मैं भी उन्होंने आपको डिमांड निकाल की है के- कि ये मुझसे ही पूछे. नहीं बिल्कुल नहीं भी. ये वकार ने पूछे जरा. जनाब वकार मुस्तकीम आपका सवाल है. मोहम्मद वकार आपने सवाल किया है, शबनम का पाकिस्तान में कितना असर और रसूख है? पाकिस्तान तो शबनम की राह ही तकता रह गया. वही यानी कि ड्यू का. ड्यू का यार ड्यू वो फैक्टर. शबनम तो 80s में रिटायर हो गई थी फिल्मों से. मेरा नहीं ख्याल उनका काम है कि पाकिस्तान क्रिकेट से. उन्हीं की बात कर रहे हैं उन्हीं ना. की बहनी हुई. अच्छा, शबनम इज ड्यू. हाँ, ड्यू. अरे इतनी सलीस उर्दू. It was due. ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀ ਬਾਲ ਇਹਨੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਜਵਾਬ. Actually, you know what? We had a different winner, but I think this question takes the cake. Cake, Yes? yeah. ये तो मेरा ख्याल है आपको ये बॉल जो है वो हम देते हैं, चूंकि हम जो ढूंढ रहे हैं ना वो ढूंढ रहे हैं ऐसा सवाल जिसपे कि हम खुद भी जो है Confuse हो जाएं. कंफ्यूज हो जाए. तो इस पे क्लियरली वसीम भाई जो है आपको समझ में आ गया कि वसीम क्या सोच रहे थे और किसके बारे में सोच रहे होते हैं. वो बांग्लादेश पहुंच गए थे. Okay, I have no idea what you meant by that. शबनम But इज actually ओरिजिनल from Bangladesh. बांग्लादेश ना. Yes, I know that part, but I don't know what he meant by that. आई हैव नो आइडिया. There you go. That's what I meant, right? फिर मैंने भी नहीं पता Right? लगा. है ना? कुछ समझ में भी. अच्छा तो है ना? मैं हमें कह देता है. ठीक है. तू एक बड़ी दफा कह के सोच के बात किया कर विकी. मैंने अब आइंदा मुंह को ढीला नहीं छोड़ना. अब बाकी पावे सब कुछ ढिला हुए. वो लगा. All right, Janab Waqar Mustaqim, congratulations. You are going to be the first winner of Ask the Room, hashtag Ask the Room. और आपका सवाल था कि शबनम का पाकिस्तान में कितना असर रसूख होता है. सवाल भी आपने बड़ा खूबसूरत तरीके से जो है पेश किया. और पाकिस्तान तो शबनम की राह ही तकता रह गया. बिल्कुल आप सही कह रहे हैं. वो पूरी हमारी बैटिंग राह तकती रह गई कि अब आएगी शबनम, अब आएगी शबनम, अब आएगी शबनम. उनको ये पता ही नहीं चला शबनम जो थी वो पाकिस्तान की बॉलिंग के आखिरी 10 ओवरों में आके चली भी गई. एंड विद दैट कंग्रेचुलेशंस. सो दैट बॉल राइट देयर दैट यू हैव द डीपी वर्ल्ड क्रिकेट बॉल व्हिच इज साइंड बाय ऑल आवर पैनलिस्ट हियर. इसके ऊपर आपको साइन नजर आएगा. ये शॉट दिखाते हैं. दिस इज साइंड बाय वसीम अकरम, वकार यूनुस, पुजारा एंड निखिल. एंड this will be dispatched to you by DP World. So congratulations on that. डिस्पैच कहाँ करेंगे? वो पता कहाँ वो दे? सर टीम ने ये देख लिया है. टीम is now going to send a direct message, a DM inside the वो, और उनसे पूछा जाएगा कि आपका पता क्या है, आपका फोन नंबर क्या है, और फिर वकार आपसे ये मेरा वादा है कि ये गेंद आपको ना मिले जल्दी तो आपके बच्चे को जरूर मिलेगा. यार आप डीपी वर्ल्ड को बहुत हल्का ले रहे हैं क्या? डीपी वर्ल्ड कनेक्ट्स द वर्ल्ड. They move things very fast. की बात नहीं, अपनी टीम की बात कर रहा हूँ. हाँ, अपनी टीम की बात हो रही है. हमारी अपनी टीम की बात हो रही है. ऐस वकार दी गल कर. Waqar Mustaqim, congratulations to you. All right, with that, let's talk about the Pakistan's next big game with India. Now that's going to be a lot of pressure. बाकी मैच भूल जाइए. बाकी बस भूल जाएं. अब जो हो गया वो हो गया. जो गुजरना था दोनों वो जो गुजर अगले गया. बाकी टीमें भी तो हैं साथ.
हाँ नहीं, कल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट Yeah. मैच है, मगर वो अभी जरा एक पाकिस्तान की टीम के ऊपर कह रहे हैं जल्दी से, चूंकि पाकिस्तान की टीम का मैच हुआ है, तो ये देख लेते हैं कि हमने बात की थी वैसे इसके ऊपर थोड़ी बहुत पहले भी, बट ये अगले मैच का तो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं आ गया वसीम? ऑफ कोर्स आ गया। अभी पुजी ने ठीक ठाक एक्सप्लेन किया है। जीतने से जो कॉन्फिडेंस आता है वो कॉन्फिडेंस अगले मैचेस में लेके जाते हो। और जिस तरीके से वन साइडेड हम हारे हैं, अब एक तो रिकवर करना है मेंटली, फिजिकली, मेंटली, मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेंटली, और फिर तैयार करना है अपने आप को इन नेक्स्ट 2 days 3 days टू प्ले अगेंस्ट वन ऑफ द बेस्ट साइड्स इन वर्ल्ड क्रिकेट। Right, and then tomorrow we have another big game that we need to talk about. That is India versus Bangladesh. Let me bring this to you, Puji. This is not going to be as easy as people think that this is going to be for India, or is it? Yeah, I completely agree. I don't think it will be an easy game for the Indian team, but the good part is the team has been playing very good cricket. और अभी जिस तरह से टीम का जो बैलेंस है, क्योंकि दो स्पिनर जो ऑलराउंडर है, दोनों बल्लेबाजी कर सकते हैं, जडेजा और अक्षर, और उनके साथ शायद वरुण खेलेंगे कल प्लेइंग 11 में। तो जो स्पिनर का जो कॉम्बिनेशन है वो सेटल हो गया अभी, और उसके साथ बैटिंग में जो डेप्थ है इंडियन टीम में वो बढ़ गई है। क्योंकि पहले था कि 6 नंबर तक जो प्योर बैट्समैन है वो थे, उसके बाद ऑलराउंडर्स आते थे, बट अभी ऑलराउंडर्स 8 नंबर तक बल्लेबाजी कर रहे हैं। प्रॉपर बल्लेबाज है। हाँ, प्रॉपर बल्लेबाज है जो 8 नंबर तक है, और उसके बाद आपके जो गेंदबाज है वो बल्लेबाजी के लिए आएंगे। अभी आपके यंग लड़के ने 100 किया ऑस्ट्रेलिया में, रेड्डी क्या नाम था उनका, जो नीतीश कुमार रेड्डी। क्या बैटिंग किया उसने। I mean, I was amazed to see that batting, man. So this is the backup they have. Wow, These, this- Indian team. Well, एक सवाल कर लो ना? जी करें मैं जरूर। अब निखिल से ही कर लेता हूँ या दोनों से आपसे। बुमराह का ना होना, बुमराह will that affect or will that really, you know, confidence उससे नीचे आता है? कॉन्फिडेंस बिल्कुल नीचे आएगा। देखिए, वो ऐसे गेंदबाज है हर एक फॉर्मेट में कि वन ऑफ द मोस्ट, मतलब जो उनकी प्रेजेंस है, जितनी विकेट्स वो लेते हैं और उनका जो इम्पैक्ट है टीम में, वो अलग ही लेवल का है। बट जो बैकअप बॉलर्स की जो बात कर रहे थे, और बैकअप प्लेयर्स भी जो है इंडियन टीम के पास, वो काफ़ी ऑप्शंस है अभी। खास करके यंग अर्शदीप, जिस तरह से वो गेंदबाजी कर रहे हैं, उन्होंने T20 फॉर्मेट में बहुत अच्छी गेंदबाजी करी, अब वनडे में भी वैसी गेंदबाजी वो कर रहे हैं। तो उनके साथ बाकी के जो मोहम्मद शमी एक्सपीरियंस प्लेयर है, और हर्षित, उनकी कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एक्सपीरियंस की थोड़ी कमी है, बट टैलेंट है। तो टैलेंट इंडियन टीम में काफ़ी है, बट बुमराह की कमी तो महसूस होगी, और शायद लीग फेज पे ना हो, बट जैसे जब सेमीफाइनल और फाइनल मैच में अगर इंडियन टीम पहुंचती है तो वहां पर ज्यादा कमी लगती है। हार्दिक पांड्या बॉल करेगा मेरे ख्याल में पाजी, और तो वो छठा एक बॉलिंग ऑप्शन हो जाता तो एक इजी हो जाता। 5 आपके मेन बॉलर हो जाते हैं विद एन ऑलराउंडर हार्दिक से, बड़ा फर्क पड़ जाता है। इसीलिए इंडियन टीम का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा है। एंड जस्ट टू आंसर आपका जो सवाल, जसप्रीत बुमराह का पहले 3 ओवर में नया बॉल से, ऑफ कोर्स जब वो अपना 2 ओवर का स्पेल बाद में डालने आता है या एंड ओवर्स में डालने आता है, ही इज वन ऑफ दोस गाइज कि अपने कभी भी 18 ओवर के एक स्पेल में या 12 और फिर 18 गेंदों के स्पेल में 2 या 3 विकेटें स्किल से निकाल देता। You know, he doesn't look at the wicket, जो खतरनाक स्लोअर बॉल है। I mean, आप दोनों से बेहतर कौन समझाएगा, बट स्लोअर बॉल डालना बतौर फास्ट बॉलर भी एक आर्ट है। किस ट्रेजेक्ट्री से गिरता है, किस लेंथ पे गिरता है, वो बड़ा फर्क है। एंड देन द फॉलो अप डिलीवरी, जब आप यॉर्कर डालते हैं, ही बॉल्स विद दैट सॉर्ट ऑफ पेस, वो बाउंसर, फर्क पड़ता है। बट लाइक फॉर लाइक तो नहीं, बट यू गॉट एन एक्सपीरियंस कैंपेनर इन मोहम्मद शमी। यू प्रोबब्ली हैज वन ऑफ द बेस्ट रिस्ट in the game, जो बॉल लेट स्विंग कराता है। I think Team India and the entire dressing room would be looking to Mohammad Shami to get you early breakthroughs as well. But I think And he's been India able to do team that. एक ऐसी सिचुएशन, ऐसी जगह पे आ गई है दुनिया की क्रिकेट में कि ठीक है, one of the in fact the best bowler of this era, Bumrah, no doubt, by miles, hands down. But वो उसके ना होने से वो टीम का कॉन्फिडेंस शैटर नहीं होगा। नहीं, I don't It's think a so. confident They sign. might miss him, but it's not going to be like, oh, you know, we are under so much pressure or something like that. जैसे हमें मार पड़ी सायम अयूब के ना होने से, हमें psychologically बिल्कुल आज फील हुआ है कि उसका होना अगर वो होता तो शायद मुख्तलिफ होती। Yeah, absolutely. Today, I think that's a very good point. We never discussed it earlier, but that is indeed a very good point. And with that, we're going to take a break right here on the DP World Dressing Room. But when we come back, there's more on the other side, and then we will sign off. So see you on the other side.
Welcome back to the DP World Dressing Room. You're watching our continued coverage of the ICC Champions Trophy 2025, and we are almost about to wrap up. But एक बड़ी अजीब सी चीज है, वो मैंने actually #AskTheRoom में पूछनी थी. उससे पहले वो जरा आप क्या कह रहे थे, वो क्या कह रहे थे वकार, जो बड़ी हमने उस पे बात की थी, क्या था? What was the word that you used? बता देना यार, क्या था? पायल बता, दोनों ही मुकर गए, बस यही मुकर गए. यार तेरे से तो बात नहीं करनी, गल भी नहीं यार, इससे बात करो, कोई वो ठक वीडियो लगा के ठक ठक लगा भी देता है. बंदा यार, बट ये एक्चुअली जेन्युइन बात थी जो की थी. तो जेन्युइन वसीम भाई इन्हें को फोन खोना पैना मैं देखा. #AskTheRoom में एक सवाल आ रहा था बार बार हमसे कि पुजारा भाई से ये पूछेंगे वो किसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, क्योंकि आप सुबह से कह रहे हैं कि वो सब्स्टिट्यूट हैं, तो किसके सब्स्टिट्यूट हैं? आप ही बता दीजिए लोगों को. देखिए, मेरे बताने से बेहतर होगा हम वीडियो देखते हैं उनकी. अरे वेल डन पूजी. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल. आप सबके लिए एक अपडेट लाया हूं. चैंपियंस ट्रॉफी डीपी वर्ल्ड ड्रेसिंग रूम में मुलाकात होगी इस बार. लाइव होगा 10 स्पॉट्स पे. इस पे खास मेहमान है, खास दोस्त है हमारे वकार यूनुस साहब, जो कि खास दोस्त हैं वसीम अकरम साहब, जिनसे डरते रहे, वो भी होंगे, और निखिल चोपड़ा हिंदुस्तान से, वो भी इस ड्रेसिंग रूम का हिस्सा होंगे. तो आई लुक फॉरवर्ड टू ऑल ऑफ यू ज्वाइनिंग अस, बिकॉज डोंट फॉरगेट हमारे जो होस्ट हैं फकर आलम साहब, वो जहां भी होते हैं मस्ती होती है, कहानियां होती हैं, और डीप इंसाइट होता है क्रिकेट के बारे में. सो आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू ऑल ऑन डीपी वर्ल्ड ड्रेसिंग रूम live on 10 spots. Look forward to joining you. Arey वाह! So now we know who you're substituting for. What a great substitution that you're doing, yeah? He's doing a great job. Great job you're doing, and what a great person that you're substituting for. So Ajit Jadeja will be joining us. लेकिन हम थोड़े से गमज़दा, थोड़े से दुखी मिस करेंगे आपको मिस करेंगे. मैं भी मिस करूंगा. Because एक दिन में केमिस्ट्री बन जानी, क्यों? भाई अभी नहीं जा रहा, अभी है, नहीं झाड़ देंगे. एक कुर्सी और रख लिए, एक कुर्सी और रख लेना. कहे तुसी दोगे? आपके काट के मैं रखवा देता हूँ कुर्सी, नो प्रॉब्लम. तू अपनी एक कड़ी बेचना भाई, मेरी छड्डो, तुसी अपनी बेचो. हाँ मेरी बेच दो. हाँ ना, मैं बेच दूँ आपको. चलो रहने दो. I don't know why. I know this is that time of the night. Kodababa.com. Kodababa.com. You know how he gets grumpy at this time of the night. और फिर वसीम कैसा लग रहा है? I'm good. Get on with it. Yeah, I can see that you're showing on TV that you're good. Let's move on. All right, you know what? I'll tell you what. I give you a break, man. I'm going to wrap this up for you. Yeah. Yes? Because I have nothing to say. You're gonna wrap it up. Nothing to say. बहुत कम होता है कि जब हमारे पास कुछ नहीं होता कहने के लिए. But I just say this is the first day and we're going to warm up. A little bit of issues here there. उसके लिए हम माज़रत चाहते हैं. We're going to get everything together for you tomorrow. But we're going to be back same time tomorrow morning for the pre-match of the very important game tomorrow, India versus Bangladesh, live from Dubai. आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे. I'd like to thank you all. Nikhil, thank you very much. It has been an absolute delight. And I hope that your bua is not as upset as we are all thinking that she is. Not all भाई. एकदम और माफी मांग लो. एक बारी और माफी मांग लो वरना, ठीक है ना? And Bakar, I hope that you are more rested. I hope you're not doing double shifts, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा आजकल जो है ना, आप दो जॉब्स कर रहे हैं, ताकि खर्चे बहुत हो गए इन्फ्लेशन की वजह से. But you know, you need to be rested, ठीक है ना? नौकरी बचा के रखना. Thank you so much. Massage will be nice. Massage, okay, I can't do that. You got to do that for yourself. Pujara, it has been such a delight to have you. बहुत शुक्रिया आपका, आप आए इतने short notice पे and to be here with us. But you know what? It's been wonderful. You've got such a great presence and energy. तो थोड़े से आप इंट्रोवर्ट हैं, लोगों का कहना है, हमें तो बिल्कुल चेंज कर रहे हैं आप तो चेंज कर रहे हो वो. काफी कहानियां बाहर निकल रहा है. बिल्कुल. अच्छी बात है. हमारी स्पेशलिटी यही है यहाँ पर ड्रेसिंग रूम के अंदर कि हम अंदर का बंदा बाहर निकाल लेते हैं. अंदर का बंदर बाहर निकाल लेते हैं. बंदा क्या है? सिर्फ एक ध्यान करना है, ग्रीन रूम में जो भी कहना है ना, एहतियात से कहना है, क्योंकि इस बंदे को कोई पता नहीं है. हाँ, मेरा कोई पता नहीं. And eventually, last but certainly and absolutely not the least, the swinging Sultan. Thank you so much. It's time for you to swing. Good night. I'll see you tomorrow. And please be more happier tomorrow morning. I am happy. I love you, man. You know how it is. Thank you so much, man. And with that, this is the end of the first day of the DP World Dressing Room here at the ICC Champions Trophy 2025. We'll be back here tomorrow.
12 noon Pakistan Standard Time, and whatever time zone you are in, remember you can send us your messages #AskTheRoom. और ये भी याद रहे कि आप हमें YouTube पे भी देख सकते हैं. Of course YouTube पे जो वर्जन है उसके अंदर लाइव फुटेज जो है वो हमें काटनी होती है, फ्रीज करनी होती है because of digital rights issue, but you can go to Sports Central. That's the YouTube channel where you can see us, and we will be back here tomorrow morning. Till then, take care of yourselves. Thank you for joining us. I'm Fakhri Alam. This is the DP World Dressing Room. Good night.